शुरू करें सर? शुरू कर दें सर? बिल्कुल सर। Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle. Today we have a webinar on compliances overview and opportunity to professional under FTP, FCRA and FEMA. And on this subject, today we have our star authority and very experienced learned speaker, CA Hansraj Chugji. Everybody knows Hansraj Chugji, there is no need to introduce him, but still my duty to say a few words about him. Hansraj Chugji is a fellow chartered accountant, fellow company secretary, law graduate, and insolvency professional. He has more than 30 years of experience in the professional practice relating to indirect tax, foreign trade law, including foreign trade policy, custom, FEMA and banking related law. He is founder partner in Messrs. ASHM and Associate Chartered Accountant, New Delhi. He serves to various Indian corporates and MNCs in the above area of the practice. Presently, he is a Central Council member of ICI for the council term 2019-22 and has been nominated as a chairman of the Committee for Export of CA Services and WTO 2021, chairman of International Placement Directorate 2021, and vice chairman of the Committee for a member in Industry and Business CMI and B for the year 1920 and 2021. He has also served the profession of Chartered Accountant as a member of NIRC of ICI for 2 terms, that is 10-13 and 13-16, and held the position as a secretary during the period 10-11 and vice chairman during 15-16. He is a regular speaker on goods and service tax (GST), foreign trade policy, custom law, insolvency and bankruptcy code (IBC), and other economic issues of the nation on various platforms of professional institutions, educational institutions, PSUs, trade bodies, and promotional councils, etc. During 2013-16, when he was also the member of NIRC and I got the chance to work with him as a council member, I would like to state here that when I was the secretary and he was the vice chairman of NIRC, when some problem, कभी भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो चुक साहब बड़े भाई की भूमिका में होते थे और हम सबको 12-13 मेंबरों को समझा करके कोई भी चीज थी तो उसका सब निदान कर देते थे और गाइड की भूमिका में रहते थे। तो विद दिस आज चुक साहब भी हमें वही गाइड की भूमिका में ही रहेंगे और सब मार्गदर्शन करेंगे और प्रोफेशनल्स को बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। ये जो एरिया है एफटीपी, एफसीआरए और फेमा, ये अनटच्ड रहता है, काफी लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं रहती है। तो विद कीपिंग इन दिस माइंड आई कंसीव दिस आइडिया टू हैव द वेबिनार ऑन दिस, एंड विद दिस आई वंस अगेन वेलकम आवर धमीजा जी, कोहली साहब, कटपालिया जी, दीप जैन जी, एंड अल्टीमेटली CCM साहब हंसराज चुग जी, and over to Chuk साहब. Please unmute sir. Chuk साहब unmute sir. Thank you राजेश भाई for such a nice words. जो आपने वर्ड 13 और 16 की बात करी ना, जी सर, जी सर, भाई नेचुरल सी बात है कि भाई we were together, but role of you and me definitely in the same position, same as a regional council member. हम सब लोगों की कुछ कॉमन जिम्मेवारियां थी जिसमें आपने भी बखूबी जो है अपनी जिम्मेवारियां संभाली और हमें भी जो जिम्मेवारी मिली उसको हमने कोशिश करी कि हम पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ पूरी जिम्मेवारी के साथ उसको निभाएं। और बाय गॉड विलिंग हम उसके बाद आप सबके सहयोग से यहाँ तक भी पहुंचे और नेचुरल सी बात है कि इसमें कंट्रीब्यूशन आपका भी बहुत अच्छा रहा रीजनल काउंसिल में, और आपकी कंटिन्यूटी बाय सर्विंग टू द प्रोफेशन इन दिस प्लेटफॉर्म और पूसा रोड स्टडी सर्किल इज ऑलवेज बीन admired by so many all the professional fraternity. Sir, we also wish कि आप highest position पर भी आओ. Thanks for the wishes. Our best wishes. हमारे भाई लोग जो है धमीजा साहब हो गए, कोहली साहब हो गए, कटपालिया साहब हो गए, दीप जैन जी हो गए, और भी जितने साथी लोग हैं सबकी विशेष परमात्मा जो है करेगा तो आने वाले समय में गॉड विलिंग वहां तक भी पहुंचेंगे।
लेकिन ये सब आपको भी मालूम है कि रास्ते आसान नहीं हैं, रास्ते डिफिकल्ट हैं, बट गॉड इफ अलाउड तो विल बी डेफिनेटली whenever the situation comes we'll try to be there. तो फ्रेंड्स, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए और मोर सो अपनी पूसा रोड सीपी स्टडी सर्किल का सबसे तहे दिल से धन्यवाद करते हुए होल ऑफ द टीम, द फाउंडर राजेश जी, देन एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम धमीजा जी, कोहली साहब, कटपालिया साहब, और भी जो हमारे साथी लोग इस जो स्टडी सर्किल से जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद करूंगा। और सब्जेक्ट की जहाँ तक बात करूं तो कहीं ना कहीं एक कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम सब समझते हैं कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नजर आता है। जब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर चेंजेस की बात करते हैं, चाहे वो फेमा के अंदर हो, चाहे एक अभी 2010 के अंदर जो है जो पुराने लॉ को अमेंडमेंट करने के बाद में एफसीआरए की बात हो, तो आप सबने जो है वो समय देखा है जब इंडिया से जो है इंडिया में बहुत सारा पैसा फॉरेन से इन द शेप ऑफ ए जो है डोनेशन आता था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जो जरूरत थी, तो उसके वजह से कुछ चेंजेस अपने एफसीआरए के अंदर लाए गए, क्योंकि जेन्युइनली जो है जो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए या नीड बेस्ड जो है जो डोनेशन की जरूरत थी उसको ही संभाला गया। अदरवाइज बहुत सारे किसी और शेप में आ जाते थे फॉर डूइंग सम इल थिंग्स और अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट और द पब्लिक इंटरेस्ट, उन सबको जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। सबसे पहले मैं जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे आऊंगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैं आपसे एक स्क्रीन भी शेयर करने की बात करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट ये रहता है कि जब हम स्क्रीन के थ्रू बात करते हैं तो जो है हमें काफी चीजों के अंदर क्लैरिटी आती है। तो काफी चीजों के अंदर जब हम क्लैरिटी चाहते हैं तो हमारे पीपीटी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो पीपीटी के अंदर मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि कुछ चीजें आने से पहले मैं समझ लें, क्योंकि हमारे जो स्क्रीन पे जो हमारे साथी लोग आ रहे हैं ये सब हमारे पुराने साथी हैं। तो 1992 से पहले की जो पोजीशन है वो सब हमने देखी हुई है। यदि हमें अपने घर पे या ऑफिस में एक टेलीफोन चाहिए होता था तो हाउ लॉन्ग इट यूज टू टेक। यदि हमें कोई गाड़ी परचेज करनी है तो हमारे पास अदर देन मारुति 800 के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं था जो हम, यदि हमारे पास पैसे भी हैं तो कोई बड़ी गाड़ी इंपोर्ट करनी है तो वो बहुत डिफिकल्ट होती थी, और जो उसके टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते थे बहुत ज़्यादा होते थे। और जो भी इंडिया के अंदर यदि हमारे पास सुविधाएं हैं जो आज की डेट में हम इंजॉय करते हैं, जैसे मोबाइल हमारे पास है, ये 92 से पहले नहीं होता था, या उस से पहले आना बड़ा डिफिकल्ट होता था, चार्जेस बहुत हाई होते थे। ये सब क्या था? बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड और द इकोनॉमी विच इज नॉट ए फ्री इकोनॉमी, उसका सिनेरियो था। और आज हम फ्री इकोनॉमी की तरफ बैठे हुए हैं जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड हमें एक जैसा नजर आता है। एक्सेप्शन टाइम इज लाइक टुडे, बिकॉज चाइना इज अंडर चैलेंज, वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो बिजनेस के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ इस तरह की चीजें लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल कर रही है ऑन द चाइना, बट अदरवाइज इट कैन नॉट बी डन बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे ट्रेड को जो है जो भी उसका पार्ट बन जाते हैं उसको संभालते हुए उस उसके पैरामीटर को अंडरस्टैंड करते हुए बिजनेस को रन करता है। नेशनल जिसको हम बात करते हैं ना कि भाई इंडिया के अंदर जीएसटी एक पार्ट बना एज ए नेशन। जीएसटी अंदर एक बात बना कि जितनी भी 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने एक ही लॉ को अप्लाई करना है। और डब्ल्यूटीओ का भी सिमिलर कंसेप्ट है। ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो या नॉन टैरिफ बैरियर हो, उनको खत्म करके होल ऑफ द वर्ल्ड हैज टू बी मेड वन। लेकिन वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बड़ा चेंज है। कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्री है, कुछ लैंडलॉक कंट्रीज हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई छोटी कंट्री हैं, कुछ डब्ल्यूटीओ का पार्ट नहीं है। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक रीजनलिज्म, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के द्वारा हम उसकी डायरेक्शन को बढ़ाते चले गए। हमारा लाइसेंस राज खत्म हुआ,
हमारी प्रोहिबिशन खत्म हुई, हमने मार्केट को ओपन किया। मार्केट ओपन में हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ किया। इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करती है? इकोनॉमी जब दुनिया से बाहर निकलते हो, वर्ल्ड से, अपने एरिया से बाहर निकलते हो, आज जो काम हम करते हैं, कल हम उसका दायरा बढ़ाएं और कोई वर्टिकल अपने ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा कर दें, या हम उसके डिफरेंट सिस्टम के द्वारा कई जगह ब्रांचेस खड़ी कर दें, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो इसी तरीके से पूरे इंडिया का बिजनेस जो है, जो क्यूमुलेटिव बिजनेस है, इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास साधन तैयार हुए कि हमें एक्सपोर्ट को थ्रस्ट करना है और इंपोर्ट को भी रोकना नहीं है। इंपोर्ट को रोकने से क्या होगा कि वो तो आपके, जैसे आप किसी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो चाहता है कि आप भी मेरी कंट्री से आप इंपोर्ट भी करें, तभी आपकी ग्रोथ है। तो इस तरीके से, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने वहां से एक्सपोर्ट तो पूरा कर दिया, चाहे वो उस सिस्टम के द्वारा कि भाई चाइना ने एक्सपोर्ट तो पूरा कर दिया, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर उसने कंट्रोल रखा, क्योंकि वहां इकोनॉमी की शेप जो है, काम करने की जो ताकत थी, वो अलग तरीके से थी। वहां उन्होंने अपने आप को जो है इकोनॉमी के अंदर इतना सक्षम बनाया कि उनको इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट करने की जो जरूरतें थी वो कम हुई। आप दो तरीके से काम करते हैं, आप या तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, वो तो बेस्ट है कि उससे रिवेन्यू जनरेट होगा। दूसरा है कि यदि आप इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अपने यहाँ डेवलप करना शुरू कर दें, जैसे हम अभी इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के अंदर इंपोर्ट काफी होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट काफी होता है, इसी तरह की जो है आयरन एंड स्टील काफी इंपोर्ट होता है। यदि हम इसका सब्स्टिट्यूट इंडिया के अंदर ढूंढ लें, जैसे अभी फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रॉ प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं। तो इनके जो सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट प्रोडक्ट है, या इनका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे डेवलप कर देंगे, तो हमारी इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने लोकल प्रोडक्ट से मैच करेंगी। तो हमारा जो आउटफ्लो है यहाँ से, वो रिड्यूस हो जाएगा। और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, सेल्फ रिलायंट इंडिया की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे जो विंग हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, उससे बाहर हमें निकलना पड़ेगा, वहां से जो बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा, और इंडिया में भी स्पेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कोविड केम इन, तो उसका इम्पैक्ट कुछ आया, लेकिन वो एक टेम्परेरी इम्पैक्ट है। हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं 24-25 तक, लेकिन अभी वो बात के ऊपर थोड़ा सा रुकाव आ गया कि भाई उतनी को पूरी करने के लिए अभी क्षमताएं हमारी अपनी नहीं पैदा हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19। हमारे कुछ चैलेंजेस, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या चाहे डिमांड से रिलेटेड हो, वो आ गए। सिक्योरिटी जो है, जो लोगों के अंदर स्पेंडिंग होती थी, आज किसी ने जो है, सपोज हमारा दोस्त अश्वनी कटवालिया जी, वो रॉयल्स रॉय गाड़ी को परचेज करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो रॉयल्स रॉय की जगह है वो अश्वनी जी, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी ताकत है वहां तक, लेकिन अब ये रॉयल्स रॉय की जगह है, अब ये BMW या अपने मर्सिडीज तक रुकेंगे, क्योंकि अब उनको ये कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी नजर आ रही है फ्यूचर की। तो इस तरीके से हमारी स्पेंडिंग पावर के अंदर कमी हो गई। तो राजीव भाई आपका नाम और अपने धमीजा साहब का नाम इसलिए नहीं लिया मैंने, क्योंकि कटपालिया साहब से हमारी जो है कुछ मित्रता, क्लोजनेस है, तो मैं राजेश भाई का भी इसलिए नाम नहीं लिया। तो लेकिन मैं आपको भी जो है इतना कैपेबल समझता हूँ कि आप भी उसी कैटेगरी में हैं, तो इसलिए आपके नाम भी साथ में जोड़ दिए मैंने। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी चैलेंजेस जो आए हैं, इसको हमने कैसे ओवरकम करना है। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ मेथड्स मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिसमें हम एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ओवरकम करने के लिए जो हैं, तो इसमें प्रोफेशनल का कंट्रीब्यूशन, आज का जो टॉपिक जो राजेश भाई ने मुझे दिया, साथ में इनके ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करना और साथ में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना। मैं आपको जस्ट अपनी सिंपली बता सकता हूं, जब ये कोविड-19 का दौर शुरू हुआ मार्च एंड के अंदर, तो हमने अपने ऑफिस के अंदर एक जूम मीटिंग, जो क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था,
हमारे ऑफिस की टीम से जो है, जो प्रोफेशनल टीम है, उनसे हमने एक जूम मीटिंग करी कि भाई ये चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। कुछ क्लाइंट्स हमारे उस तरीके के हैं जहाँ पे ये चैलेंजेस ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, क्योंकि कुछ ऑटो सेक्टर कंपनियां हैं, कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं। तो हम इसको ओवरकम कैसे करें कि भाई हमारे रेवेन्यू के अंदर इम्पैक्ट ना आए, इम्पैक्ट इतना आए कि हम इसको टॉलरेट कर सकें, हमारी जो रेंज आए कि हम, यदि आपको जो है, क्योंकि अप्रैल महीने के अंदर हमारा रिवीजन होता है, रिव्यू करते हैं हम अपने स्टाफ की सैलरी और जो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड आ चुका था तो हमने रिव्यू को तो चलो बंद कर दिया, लेकिन उनके साथ ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम आपकी तनख्वाह को कम नहीं करेंगे। उसलिए क्योंकि हमारा एक कॉन्फिडेंस था कि हमारे जो बिजनेस के अंदर यदि कोई चैलेंज आ जाएगा, हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर चेंज आ जाएगा, तो हम साथ में अपॉर्चुनिटी को भी साइमल्टेनियसली ग्रैब करेंगे। फॉर्चुनेटली अभी तक की जो हमारे डाटा निकल के आए, जो मंथ टू मंथ हम टैली करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि वो अभी तो पुराने काम चल रहे थे, पुराने हमारे एग्रीमेंट चल रहे थे, वो चल ही रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कॉल आनी शुरू हो गई कि भाई आपने रिड्यूस करो अपनी जो है प्रोफेशनल फीस वगैरह। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे को एक्सपोर्ट से हमारी इनकम के अंदर कुछ इनकम जो है फॉरेन करेंसी के होना, अंदर होना, चाहे वो यूएसए से इनकम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे कनाडा से हो। हर इंसान का कोई ना कोई जानकार इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, कोई ना कोई क्लाइंट उसका यहाँ पे जो इंडिया से बाहर वाला है वो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है। तो हमने उसको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो अभी तक वो हो सकता है एंजॉय ना कर रहा हो, कुछ एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स के बारे में, कुछ इस तरह की चीजें जो कॉस्ट को इम्पैक्ट करती हैं, वो सब चीजें डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स 19-20 के अंदर जो मैं अभी फॉरेन ट्रेड की बात करूंगा, मैं इंटरनल ट्रेड की बात नहीं करूंगा। 92 के अंदर जब बदलाव आया तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया, बहुत सारे एक्ट चेंज हुए। फेरा जो एफसीआरए होता था उसका नाम फेमा हुआ, जो फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, वो फेमा हुआ। एफसीआरए तब भी था, अब भी है। तो लेकिन एफसीआरए 2010 के अंदर एक डिफरेंट शेप में, जो उसकी जो शेप थी वो कंप्लीट चेंज हुई, जो 1976 से चला आ रहा था उसका बिल्कुल चेंज हुआ। तो 2019-20 की बात करता हूं तो हमारा एक्सपोर्ट था 528.45 बिलियन यूएस डॉलर। इसमें सर्विसेज का एक्सपोर्ट था 214 बिलियन यूएस डॉलर और प्रोडक्ट का 314 बिलियन यूएस डॉलर। और इंपोर्ट की बात करते हैं 598.61 बिलियन यूएस डॉलर। ट्रेड डिफिसिट था 70 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, चाहे वो अकाउंटिंग सर्विसेज हो इसके अंदर या और जितनी सर्विसेज हैं, 12 सर्विसेज सेक्टर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विसेज जो है वो थ्रस्ट जो है, जिसके अंदर बहुत स्कोप है वर्ल्ड ओवर कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट, प्रमोट देयर सर्विसेज टू अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि पैरामीटर्स क्या है, अकाउंटिंग सेम, जैसे आईएफआरएस की बात करते हैं, वी आर इक्विवेलेंट टू द आईएफआरएस। जो हम जो उसके मॉडल्स जिसके थ्रू हम आईएफआरएस डेवलप करते हैं, या जो हमारे पैरामीटर्स जो पीछे चेंज हुए, जैसे जीएसटी है, लॉ बिल्कुल इक्वल टू द 156 कंट्री के अंदर जो है, चाहे वो नाम अलग हो, जो जीएसटी की तरह जो है, चाहे वैट हो चाहे जीएसटी हो, तो वही लॉ वहां पे भी है। कंपनी लॉ ऑलमोस्ट सिमिलर है इन नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ कंट्रीज। तो इस तरीके से हमारी सारी कैपेसिटीज जो बिल्ट है, और जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है वहां पे कोई अलग हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीरो है या मेयोब है, जो यूएसए के अंदर है, जो भी है, तो वो कहीं ना क्विक बुक्स है ज्यादा यूज होता है, तो वो इंडिया के अंदर भी है। तो इसी तरीके के जो पैरामीटर्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हैं। तो हमें इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए हमें अपने फुटप्रिंट्स हैं इंडिया से बाहर लाने बहुत जरूरी है, सो दैट हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। आपको मैं सर्विसेज 2020 की बात करता हूँ, अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ के अंदर जबकि इंडिया और से बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आया। एक्सपोर्ट 17.60 जो है, जो हमारा था
सिर्फ -2.54%, इंपोर्ट्स जो है -6.37%, नेट ऑफ जो है सर्विसेज हमारा गेन हुआ, जबकि मर्चेंटाइज के अंदर 60% का जो है रिडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द कंप्लीट लॉकडाउन, ऑल फैक्ट्रीज वर लॉकडाउन, सब चीजें हुई थी, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज ऑफ दी जो हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज हैं, वो सब, चाहे वो आईटी सर्विसेज हो, चाहे अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्विसेज हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो हमारे दोस्तों को कहने का मतलब ये है कि आपको समझने की बात है कि सर्विस थ्रू ए टेक्नोलॉजी, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर विद ईच वन ऑफ अस। तो लेट अस मतलब मेक अवर माइंड एंड पुट अवर बेस्ट टू अचीव द टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग आउट अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कुछ एक्सपोर्ट्स के मेन प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ सेम में मेन प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से इंपोर्ट होते हैं। तो मैं अब जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करता हूँ। इसमें 9 चैप्टर्स हैं, मेनली जो है मैं 3-4 चैप्टर जो मेन है जिसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव कोई करूंगा या जनरल प्रोविजंस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी तीन सब्जेक्ट हमारे दोस्त ने हमारी जिम्मेवारी दे दी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की भी, FCRA भी और फेमा भी। तो सभी को जो है समय देते हुए, क्योंकि FTP के अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो FTP के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा समय दूंगा और उनके ऊपर भी ओवरव्यू आपको दूंगा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है का जो लॉ है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर 20 सेक्शन है, लेकिन बट इट इज बैक्ड विद द रेगुलेशंस एंड द रूल्स, और पावर इज बीइंग गिवन अंडर दैट लॉ टू द गवर्नमेंट टू कम आउट विद ए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 2015-20 की पॉलिसी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2020 को जो है नई पॉलिसी आनी थी, लेकिन कोविड हैपेंड इन द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल, sometime in the last week of the April. तो 1 अप्रैल मार्च को कि सेम पॉलिसी का 1 साल का टर्म जो है हमें एक्सटेंड कर दिया। एक्सेप्शन इज द वन बेनिफिट अंडर द सर्विस एक्सपोर्ट इज द SCIS, जो इसका इन्होंने कहा कि हम बाद में उसकी जो है अंडरस्टैंड करके इसको दोबारा से रिव्यू करके फिर हम नोटिफाई करेंगे। लेकिन अदर देन द SCIS सारे प्रोविजंस जो है, जो पुरानी 2015-20 की पॉलिसी थी, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और वो एक्सटेंशन पीरियड अभी चल रहा है। SCIS की जहां तक बात है, 2018-19 तक सेम प्रोविजंस हैं, 19-20 के प्रोविजन आर बीन एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड एंड लाइकली टू बी नोटिफाइड इन द कमिंग फ्यू डेज। इसके अलावा 2015-20 वाली पॉलिसी चल रही है। तो जनरल प्रोविजन की यदि मैं बात करता हूं, जनरल प्रोविजन क्या कहते हैं, लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फेल। लीगल फ्रेमवर्क मैंने बता दिया, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये पॉलिसी आई, और जिसके जनरल प्रोविजन क्या है, देयर आर 3 थिंग्स टू अंडरस्टैंड, वन इज फ्री, अनदर वन इज रिस्ट्रिक्टेड, थर्ड वन इज द प्रोहिबिटेड। फ्री मींस आप किसी भी मटेरियल को इंपोर्ट में फ्री है, इंपोर्ट करो, ड्यूटी पे करो और अपना एंजॉय करो। होम के लिए है, अपने अपने लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, बिजनेस के लिए है तो बिजनेस के लिए है। आपको ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ड्यूटी के अंदर कुछ ड्यूटी ऐसी हैं जो पार्ट बन जाती है कॉस्ट का, कुछ ड्यूटी ऐसी हैं जो IGST है, जिसका आपको जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो आपके नॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर आप उसका क्रेडिट ले लेते हैं। यदि वो एक्सपोर्ट के लिए वो प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सहारा लेके उसके ऊपर ड्यूटी को 0 पे भी ला सकते हैं। उसके प्रोविजन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देन कम टू द जनरल प्रोविजंस। फ्री मींस फ्री, रिस्ट्रिक्टेड मींस आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से पहले जो उसके अंदर कंडीशन लिखी गई हैं, सपोज कोई लाइसेंस लेना है, कोई परमिशन लेनी है, किसी का कोई अथोराइजेशन लेना है, कोई आपसे जो एनवायरमेंट से कोई क्लियरेंस लेनी है, तो वो आप कंडीशन मीट आउट करेंगे तो आपको वो कंडीशन जो है मीट आउट करने के बाद जो है आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यदि आपकी वो कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है। थर्ड वन इज द प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड वो आइटम है, जैसे आपने अभी रिसेंटली कई चीजें न्यूज में देखी होंगी, जैसे बहुत सारे हेल्थ केयर की चीजें हैं जो अभी पेंडेमिक पोजीशन में, कोविड-19 की पोजीशन में गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया, जैसे PPE किट। लेकिन PPE किट का अभी 2-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, ए वीक बिफोर, कि उसको इन्होंने
थोड़े टाइम के लिए जो है उसकी एक लिमिट लगा दी, उसका एक प्रोसीजर बना दिया कि आप इतना कर सकते हैं। लेकिन मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, इसी तरह HCQ है या कुछ मेडिसिन हैं जो नॉर्मली कोविड के अंदर यूज हो रही हैं, जिनको इन्होंने प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल दिया, जिनका आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एक्सपोर्टेड आइटम प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है कोई रिक्वेस्ट आती है, सपोज यूएस से ट्रम्प साहब की रिक्वेस्ट आई मोदी साहब के पास कि मुझे HCQ चाहिए और वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, तो ऑन दी ग्राउंड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट और ऑन सम ग्राउंड, तो वो उसको एक एग्जम्पशन जो है सर्टिफिकेट इश्यू करके एक्सपोर्टर को आप उसको कस्टम क्लियरेंस के द्वारा उसको भी एक्सेप्शनल केसेस में उसको दे सकते हैं, लेकिन नॉट इन द नॉर्मल कोर्स, इट इज प्रोहिबिटेड। तो इस तरीके से हमारी जनरल प्रोविजन है, फ्री, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। नाउ कम टू द चैप्टर 3। बेसिकली आपको समझ में आता होगा कि हमारा सिस्टम क्या करता है। एक उससे पहले मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। इंपोर्ट के लिए जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल ऑफ लेडिंग है, एयरवे बिल है, लॉरी रिसीट है, जिस भी माध्यम से आप जो भी अपने लॉजिस्टिक यूज करते हैं उसके हिसाब से लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लेडिंग है, बाई सी जा रहा है तो एयरवे बिल है तो बाई एयर है, यदि बाई रोड है, सपोज नेपाल है, भूटान है या बांग्लादेश है, तो बाई रोड जा रहा है तो लॉरी रिसीट या रेलवे रिसीट या पोस्टल रिसीट। कॉमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, shipping bill is a document which is been attested by the custom authorities and let export order is been passed, ये compulsory documents हैं। इंपोर्ट के केस में BL एयरवे बिल, वही जो मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ एंट्री इज द कस्टम ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बाय व्हिच लेट इंपोर्ट ऑर्डर हैज बीन पास्ड। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट मैं चलूंगा उससे पहले कि यदि कोई कॉमर्शियल गुड्स के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए या इंटेंडेड टू बी ट्रेड एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए है, तो आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना पड़ता है, दैट इज अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट। तो ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। रेस्ट सम आर ऑप्शनल, इफ यू वांट टू रजिस्टर विद द प्रमोशन काउंसिल यू कैन रजिस्टर विद। यदि आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेने हैं तो फिर आपको कंपलसरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काम करती है। अब मैं आपको कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात करूंगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्योंकि प्रमोशन करने की इच्छा रहती है गवर्नमेंट की कि इंडिया से बाहर आप जितना ज्यादा बिजनेस करें वो उतना ही ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं और आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, गवर्नमेंट हमें प्रमोट करती है कि आप इंडिया से बाहर बिजनेस करो, आप अपनी सर्विसेज जो है ओवरसीज क्लाइंट्स को दो, NRI को दो या फॉरेन नेशनल को दो या फॉरेन कॉर्पोरेट्स को दो, जिससे आप फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा कमाओ। तो आपको जो आपकी कॉमर्शियल डील्स है उसके अलावा मैं आपको 7% जो है 7%, यदि आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो नेट ऑफ एक्सपोर्ट तो मैं 7 लाख रुपए और आपको दूंगी, गवर्नमेंट ये कहती है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों कहती है? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये है कि उसको जो फॉरेन करेंसी के अंदर अपने रिजर्व्स जो है जो उसको बिल्ड करने हैं, जो अपनी आत्मनिर्भरता बिल्ड करनी है, वो इसी तरीके से बिल्ड होगी कि आप कोई ना कोई मोटिवेशन देंगे, आप कोई ना कोई मोरल बूस्टिंग, कोई ना कोई फिजिकल बेनिफिट देंगे, तभी वो जो है सामने वाला इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप करेगा। सपोज मैं 1 करोड़ का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास जो है मार्जिन सपोज मेरे क्लाइंट से आता है 5%, तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मुझे ये पता लगेगा मुझे 7 लाख रुपए 7% जो है गवर्नमेंट भी दे रही है, तो मुझे अपना इंटरेस्ट जो 12% पे नजर आएगा, तो मैं और ज्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट करने की इच्छा रखूंगा। तो इस स्कीम के द्वारा जो है ये बेनिफिट्स हैं। तो इसमें दो स्कीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक तो मर्चेंटाइज के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और एक सर्विसेज के लिए। एक प्रोडक्ट के लिए, एक सर्विसेज के लिए। पहले कोई मल्टीपल स्कीम्स होती थी, लेकिन वो सब स्कीम्स को खत्म करके एक मर्चेंटाइज के लिए, एक सर्विसेज के लिए। तो इनको क्योंकि अपना जो सिस्टम कहता है कि WTO का आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो दूसरे के कंपटीशन को रोकता है या आप ज्यादा कंपिटिटिव होते हैं, तो आपको कुछ चीजें अलाउ नहीं होती वहां पे। तो इंडिया ने जो है ये कहा कि भाई हमारी कुछ ऐसी इनएफिशिएंसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं, और उसके द्वारा उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट है, जिसको हमने मैपिंग करके ये आइडेंटिफाई कर लिया
कि हमारा जो स्ट्रक्चरल यदि हम बेनिफिट दे सकते हैं तो वो इतने % दे सकते हैं। तो उसी सिस्टम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी और एसोसिएटेड कॉस्ट को देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को देखते हुए और एक्सपोर्ट इंटेंसिटी को देखते हुए परसेंटेज फिक्स किए गए। ये प्रोडक्ट की बात करता हूँ, 2%, 3%, 4%, 5% और 7%, इतना बेनिफिट अंडर दिस स्कीम आया। और इसका कैलकुलेशन क्या होगा, जितना एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है, इसमें नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं है। जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, वो अलग से कर रहे हैं। जो भी फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब चीजें अलग हैं। जो भी फॉरेन एक्सचेंज एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है या फॉरेन एक्सचेंज आपने जो है जो रियलाइज किया उस एक्सपोर्ट के द्वारा, जो भी मिनिमम है उसके ऊपर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये इसका कंसेप्ट है। लेकिन ये क्या कहता है, प्रोडक्ट और जिस कंट्री को, जैसे एबीसी तीन कैटेगरी में इन्होंने कंट्री डिवाइड कर दी। ट्रेडिशनल मार्केट, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, कनाडा। कैटेगरी बी, emerging and focus market, Africa, Latin America and Mexico, CIS countries, Turkey, Western Asian countries, Japan, South Korea, China, Taiwan और other countries. There are almost there number of countries, या कोई कंट्री नहीं आई तो कैटेगरी सी के अंदर जितना आप इधर एक्सपोर्ट करेंगे तो उस परसेंटेज में आपको जो है 2%, 3%, 5%, जितना भी उसका प्रेस्क्राइब रेट है उतना बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसको आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है, आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगा। स्क्रिप्ट का आप अपना यूज करना चाहें अपना यूज कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। यदि आपका अपना यूज नहीं है, आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट में हो सकता है 2-3-4% का डिस्काउंट हो, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। इसका क्या है, इन्होंने फिर दूसरा एक और प्रोविजन लाया कि यदि आप कोरियर से, फॉरेन पोस्ट ऑफिस से या ई कॉमर्स के द्वारा भी यदि आप बिजनेस करते हैं तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी जो एक शिपमेंट जो है, एक कंसाइनमेंट जो है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 5 लाख से ज्यादा है तो बेनिफिट जो है 5 लाख का कैलकुलेट करके ही आपको 5 लाख तक की एफओबी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करके आपको मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये बेनिफिट है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, कुछ चैप्टर्स इसको निकाल दिए गए हैं जो कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में या कुछ जिन चीजों का ज्यादा लुक्रेटिव एक्सपोर्ट करना इजी नहीं है या जिनको नहीं चाहती गवर्नमेंट की प्रमोट करना, उन सब चैप्टर्स को निकाल दिया है। जैसे लाइव एनिमल्स हैं, मीट एंड एडिबल्स हैं, सीरियल्स हैं, चीनी वगैरह हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। तो इस तरह की आइटम को बाहर कर दिया गया। कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो इनएलिजिबल कर दी गई, जैसे एससीजेड से जो है, डीटीए से एससीजेड है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, इनको हटा दिया गया। तो बाकी को जो है इनको बेनिफिट मिलता है। और जो इस बेनिफिट को लेने का तरीका है वो सारा डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे डीजीएफटी की साइट पे dgft.gov.in, उसके लेफ्ट साइड में एक विंडो है। आप अपना शिपिंग बिल को पुल करेंगे फ्रॉम द कस्टम साइट और अपने बीआरसी जो बैंक रियलाइजेशन पैसा आया है वो अपने जो भी आपका एथोराइज डीलर है, जो भी बैंकर है, उसकी साइट से पुल करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो वो आप उसको ईयर मार्क कर देंगे, टैग कर देंगे। तो जितने जैसे ही आपके 50 शिपिंग बिल हो गए या कम शिपिंग बिल का अप्लाई करना चाहते हैं, उससे करके जो है आप अपना क्लेम कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल मेथड। आपको लाइसेंस वहां से ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको जो है आपकी पोर्टल पे आ जाएगा, आप ऑनलाइन प्रिंट करके और रजिस्टर करके कस्टम पे ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। बेचना भी ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बेनिफिट थ्रू होता है। जब आपका पैसा आपके पास आ जाए तो समझो आपने पैसा कमा लिया। तो ये भी एक अर्निंग है। तो SCIS इसी तरीके से, तो SCIS इज ए सर्विस एक्सपोर्ट। तो ये सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज, जो सर्विसेज नोटिफाई कर दी हैं गवर्नमेंट ने, उन्हीं सर्विसेज के ऊपर मिलेगा। और इसके कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड करेंगे तब जो है, तभी आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर ये बेनिफिट है। और मोड ऑफ सर्विसेज, क्योंकि आपको समझाऊंगा मैं कि आप फॉरेन ट्रेड कैसे कैसे कर सकते हैं। इंडिया से बाहर यदि आपको बिजनेस करना है तो उसके 4 तरीके हैं। आप इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन क्लाइंट को बाय वे ऑफ द टेक्नोलॉजी, कोई भी आपके पास आया कि भाई मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करवाना है, मुझे अपनी रिटर्न फाइल करवानी है, मुझे अपना डाटा प्रोसेस करना है, मुझे कोई MIS रिपोर्ट्स बनवानी है, मुझे कोई ऐसा काम करना है जो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दे, तो वो आपने वो उसका काम जो है इंडिया में बैठे बैठे करके उसको वापस भेज दिया। उसने आपने इनवॉइस रेज करी, उसने पैसा भेज दिया। दैट इज ए नंबर 1, दैट इज ए
अंडर दी मोड 1। मोड 1 क्या कहता है? विदाउट मूवमेंट, आप वहां नहीं गए, वो यहाँ नहीं आया, आपका अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका एग्रीमेंट हो गया, आपने सर्विसेज रेंडर करी, उसने पैसा दे दिया, आपका मोड 1 में चला गया। दूसरा कंसेप्ट है कि वो आपके पास सर्विस लेने आता है। जैसे इंडिया के अंदर कोई टूरिस्ट आता है, कोई ऐसा बंदा आता है जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल सर्विसेज लेता है, कोई मेडिकेशन लेता है, कोई अपनी सर्जरी करवाता है, कोई और सर्विसेज लेता है। कोई ऐसा बंदा आता है कि कोई सर्विसेज इंडिया के अंदर आने के लिए लेता है और उसके बाद में उसको फ्री कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर पैसा भेजता है, तो वो मोड 2 हो गया। द पर्सन इज विजिटिंग यू and but the consumption is abroad. The person who is consuming your services, he is not an Indian. जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास, एक क्वेरी आई, एक हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उनका एक क्वेरी आई कि भाई एक एनआरआई है, उसके पेरेंट्स रहते हैं पंजाब के अंदर, उनको हमने अपना जो है उनको सर्विसेज दी, उनका कुछ हार्ट का ऑपरेशन किया, दोनों पेरेंट्स का, उसके जो जो बच्चा वहां पे था यूएस के अंदर, उसके पेरेंट्स को उन्होंने सर्विसेज दी, और उसने जो है सीधा 25 लाख रुपए जो है अपने डॉलर फ्री कन्वर्टेबल करेंसी में हमारे पास भेज दिए। तो भाई हम क्या एलिजिबल हैं इस स्कीम के द्वारा या नहीं है? मैंने कहा भाई ये आपकी एलिजिबिलिटी इसलिए नहीं बनती इसके ऊपर क्योंकि जो उसकी सर्विसेज कंज्यूम हुई हैं वो फॉरेन नेशनल ने नहीं कंज्यूम करी। यदि वो खुद या उसके पेरेंट्स एनआरआई होते या वो बाहर होते, उनका स्टेटस एनआरआई का होता, तो उनकी सर्विसेज उनके पेरेंट्स ने एंजॉय एनआरआई होते हुए करी होती, तो तब आपको ये बेनिफिट मिलता। क्योंकि वो इंडियन है, वो इंडिया से आए हैं, पैसा आपके पास भले ही फॉरेन करेंसी में आया, तो ये इसलिए आपकी ये सर्विसेज इस एलिजिबिलिटी के लिए नहीं बनती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंजम्पशन जो है वो हो और फॉरेन करेंसी में पैसा हुआ तो आपका वो मोड 2 के अंदर है। तीसरा मोड बनता है कि आप वहां जाके सर्विसेज दें और वहीं से फॉरेन करेंसी लें और फॉरेन करेंसी आपके पास इंडिया में आ जाए, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मोड जो है, पहले जो 2 मोड हैं उन्हीं के लिए ये बेनिफिट अलाउड है। चौथा मोड होता है कि आप वहां जाके अपनी जो है कॉमर्शियल प्लेस क्रिएट कर दें और वहीं से सर्विसेज दें, वहीं पे पैसा ले और वहां से पैसा आप अपने हेड ऑफिस को इंडिया में ट्रांसफर करें। तो वो 4 मोड सर्विसेज के डिफाइन किए गए हैं अंडर द डब्ल्यूटीओ। लेकिन ये बेनिफिट जो अलाउड है ये पहले 2 मोड के अंदर है, पहले 2 मोड के अंदर, दूसरे 2 मोड के अंदर जो है ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तीसरा ये है कि भाई इसकी आपकी एक मिनिमम कंडीशन है कि $10,000 इन द केस ऑफ द इंडियन इंडिविजुअल और द प्रोप्राइटरशिप। तो $10,000 मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है। इससे ज्यादा यदि आप एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा सर्विसेज देंगे, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इससे देंगे तो नहीं मिलेगा। और अदर देन द इंडिविजुअल एंड प्रोप्राइटरशिप $15,000, तो तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आपकी होंगी, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और एक और कंडीशन है कि यदि आपके पास जो है आईसी कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना कंपलसरी है। यदि आपने आईसी नंबर नहीं लिया हुआ और सर्विसेज पहले रेंडर कर दी और आईसी बाद में लिया, तो आपको बेनिफिट जब आप आईसी ले लोगे उसके बाद वाली जो सर्विसेज हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर मिलेगा। ये इसका कंसेप्ट है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि नेट फॉरेन एक्सचेंज, जो आपने पैसा कमाया एज ए सर्विस प्रोवाइडर और यदि आपने कोई स्पेंडिंग करी, सपोज उसके ऊपर आपने जो है बाहर विजिट करी, कोई ट्रेवल किया, कोई किसी एसोसिएशन की वहां पे मेंबरशिप ली और वो सारे काम किए, तो जो आपने फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड किया उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के ऊपर ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये एक और कंडीशन है। इन एलिजिबल सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कैपिटल अकाउंट की हैं, जैसे आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन रेज किया, कोई एडीआर जीडीआर किए, या कोई ऐसे प्रोसीड्स हैं जो जो विच आर नॉट रिलेटेड विद द सर्विसेज, तो उसको आपको उनके ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह के और कुछ जैसे फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं या कुछ इस तरह की जो चीजें हैं उसके ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कितना है? बेनिफिट है 5% कुछ सर्विसेज के अंदर, कुछ में 7%। लेकिन ये 30 अक्टूबर 2017 से पहले है सर्विसेज, तो उसमें 3% या 5% था, तो 2% जो है दोनों केस में बढ़ाया गया। तो इस तरीके से 2% वहां भी बढ़ा, 2
2% यहाँ भी बढ़ा, तो आपको अभी 5% या 7% जो है मिलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्विसेज कौन कौन सी कवर्ड है, और फिर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो देखेंगे, नहीं तो 2 चैप्टर और रहेंगे, फिर उसके बाद में फेमा और फेरा के FCRA के ऊपर जाएंगे। तो सर्विसेज क्या है? पहले है प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसको हम बिजनेस सर्विसेज की डेफिनेशन में दे रहे हैं। लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, urban planning, medical, dental, veterinary services, services provided by midwives, nursery, physiotherapist and paramedical personnel. तो इसके ऊपर हमारे पास कितना बेनिफिट है? हमारे पास बेनिफिट है 7% का 1/11/2017 के बाद में। अभी 2019 तक का अनाउंसमेंट है, 2019-20 का अनाउंसमेंट जो मैंने आपको बताया अभी आने वाला है, इसके अंदर रिड्यूस होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। ज्यादा होने के चांसेस कम है, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, तो हो सकता है या तो कंटिन्यू करेगी या कुछ रेट कुछ कम कर दे, लेकिन चांसेस हैं कि दे विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट ओनली। यदि 1 अप्रैल 2015 और 31 अक्टूबर 2017 के बीच में 5% का बेनिफिट था, अब 7% का बेनिफिट है। क्लेम पीरियड के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि अभी कितने पीरियड के आप क्लेम कर सकते हैं, कितने का नहीं कर सकते हैं, कौन सा टाइम बार हो चुका है, किसके अंदर कौन सा प्रोविजन लेगा। लेकिन पहले मैं सर्विसेज को क्लोज करूंगा। R&D सर्विसेज, जैसे आपको मालूम है आजकल बहुत सारी जो हमारी नेचुरल साइंसेज के ऊपर, जैसे हम फार्मा के ऊपर इंडिया बहुत काम कर रहा है, बहुत सारी कैंसर की दवाइयां, बहुत सारे अभी कोविड-19 के ऊपर रिसर्च चल रही हैं। यदि कोई इंडियन रिसर्च वाला है, वो फॉरेनर को कहीं ट्रांसफर कर देता है अपने राइट्स, जितना भी उसने रिसर्च किया हुआ है, तो वो एक R&D सर्विसेज ऑन नेचुरल साइंसेज बोला जाता है, जिसके ऊपर आपने कई बार पेपर में देखा होगा, किसी ने 150 करोड़, किसी ने 200 करोड़ के ऊपर अपनी अभी तक की जो रिसर्च है वो ट्रांसफर कर दी। ये अभी काफी सारी जो है रिसर्च इंडिया के अंदर चलती हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो ये सारी सर्विसेज में 7%, जो R&D सर्विसेज ऑन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज 7%, R&D सर्विसेज ऑन इंटरडिसिप्लिनरी सर्विसेज 7%। रेंटिंग लीजिंग सर्विसेज, आप सपोज जो है हमारे कुछ दोस्त, हो सकता है किसी का कोई शिप ओनर हो, कोई एयरक्राफ्ट ओनर हो, कोई ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का ओनर होता है, कोई मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स का ओनर है। वो जैसे इंडिया के अंदर भी हम इम्पोर्ट, जैसे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो क्या है, वो लीज पे हैं। लोग क्या पे करते हैं, रेंटल पे करते हैं। इसी तरह हो सकता है कि कोई इंडिया में भी बैठा हुआ कोई किसी फॉरेन पार्टी को लीज पे दे रहा हो, किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो उनको भी जो लीज रेंटल आ रही है उसके ऊपर 7% का बेनिफिट है। अदर बिजनेस सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च, पब्लिक ओपिनियन, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, टेस्टिंग, टेक्निकल टेस्टिंग, ये सारी सर्विसेज जो है 5% की कैटेगरी में है। ये मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय है। माइनिंग है, सर्विसेज इंसिडेंटल टू माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल, ये सारी सर्विसेज है। मैं PPT अपने दोस्त राजेश भाई से शेयर कर लूंगा, तो वो आप सबसे शेयर कर लेंगे, जिससे आपको सर्विसेज का आइडिया मिल जाएगा। वैसे तो ये DGFT की साइट पे सब है। फोटोग्राफी, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन में मोशन पिक्चर, वीडियो टेप, मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन सर्विसेज 7% पे हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड सर्विसेज 7% के ऊपर हैं। एजुकेशन सर्विसेज, सपोज इंडिया के अंदर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, IIT है, IIM है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, वो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो आपको 7% का बेनिफिट है। एनवायरमेंटल सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड, हॉस्पिटल का मैंने बताया, हॉस्पिटल कोई भी आपका हॉस्पिटल का कोई क्लाइंट है, होटल एंड रेस्टोरेंट है, होटल है, रेस्टोरेंट है, टूर ऑपरेटर्स हैं, टूर गाइड्स हैं, रिक्रेशनल कल्चरल स्पोर्टिंग सर्विसेज हैं, एंटरटेनमेंट है। इंडिया के अंदर बहुत सारी जो है टाइम एंड अगेन, जैसे फार्मूला 1 का रेस है या कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो फॉरेन टिकट लेते हैं, वो सब हैं। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसमें मैं आपको एक चीज और ऐड करूंगा, यहाँ पे जो एक चीज और अंडरस्टैंड करने की बात है, जैसे मैंने कहा फॉरेन करेंसी के अंदर अर्निंग होनी चाहिए। एक एक्सेप्शन है, जैसे कोई शिपिंग लाइन या एयरलाइन है, उसके पास क्या पावर है, वो इंडियन अर्निंग्स के द्वारा
उसके पास पावर है कि वो इंडियन अर्निंग्स को बाहर भी ले जा सकता है और वहां से पैसा फॉरेन करेंसी में, जैसे सपोज हमारे पास सपोज श्रीलंकन एयरलाइंस है, वो इंडिया में ट्रेवल करती है, इंडिया में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, जो जैसे सपोज ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विसेज लेता है, यदि वो इंडिया में भी रुपी में पेमेंट करता है तब भी उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके पास ये पावर है कि वो इंडियन रुपी को कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर ले जाएगा, फिर बाहर से डॉलर में पैसा भेजेगा, उसको सेविंग हो जाएगी कि जो कन्वर्जन अमाउंट है। तो इसलिए अलाउ कर दिया कि यदि आप इंडियन रुपी में भी, वो लोग जिनको ये ऑथराइजेशन है कि वो बाहर पैसा लेके कन्वर्ट कर सकते हैं लाने के लिए, तो वो आपको इंडियन रुपी में स्पेंडिंग के लिए भी आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ऑक्सिलरी सर्विसेज है, कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज, फ्रेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो इन सब के लिए जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सारी नोटिफाइड सर्विसेज है। मैंने आपको बता दिया 3%, 5% या अभी 5 से 7% ये बेनिफिट है। तो यूटिलाइजेशन इसका सेम है जैसे MEIS का है, आप पे कर सकते हैं या कुछ जो है। तो अब आपको ये अंडरस्टैंड, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि शिपिंग बिल के केस में मैंने बताया था आपके पास डाटा वहीं से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको हर साल एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ईयर टू ईयर। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई पार्टली या क्वार्टरली आप एप्लीकेशन फाइल करें, एक साल की एक क्लेम फाइल करेंगे। जैसे अभी 18-19 की बात कर लेते हैं, 18-19 का क्लेम पीरियड जो है आपको एक साल के अंदर अप्लाई करना था 31 मार्च 2020 तक, लेकिन 31 मार्च 2020 जो है, बिकॉज इट वाज ए चैलेंजिंग टाइम, तो इन्होंने उसको रिलैक्स करके जो है 31 दिसंबर 2020 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 18-19 की। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ 15-16 के का क्लेम फाइल करना था 31 मार्च 2017 तक, लेकिन उसके बाद एक और प्रोविजन है जिसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन है कि आप 6 महीने बाद में करेंगे तो 2% कट करके, जैसे आपका क्लेम है सपोज 10 लाख रुपए, तो आपको 9,80,000 मिलेगा 2% रिड्यूस करके, यदि आप 6 महीने एक्सटेंडेड टाइम में कर लेते हैं। और 6 महीने एक्सटेंडेड टाइम में कर सकते हैं तो 5% रिड्यूस करके मिलेगा 9,50,000 रुपए। एक साल और मिलेगा तो आपको 10% रिड्यूस होके 9 लाख रुपए मिलेगा, ना कि 10 लाख रुपए। तो आपके पास टाइम कितना हुआ, 15-16 का फाइल था 31 मार्च 17 तक, 2 साल और लगा लिए 19 तक, तो वो हो गया टाइम बार्ड हो चुका है। तो और 16-17 की बात करते हैं, 2016-17 जो है 31 मार्च 2018 तक फाइल किया जा सकता था, 2 साल एक्सटेंशन दे दी गई, 2 साल का वो ग्रेस पीरियड है, तो 31 मार्च 2020 तक फाइल हो सकता था, लेकिन उसकी एक्सटेंशन थ्रू द रिलैक्सेशन टाइम जो है वो 30 जून तक का था, वो भी टाइम बार हो चुका है। 30 जून तक जिसने क्लेम कर लिया 16-17, अदरवाइज ये टाइम बार हो चुका है। तो उसके बाद बचा 17-18 जो है आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं। 17-18 की जो ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 19 तक है, लेकिन आपका पास 2 साल का और पीरियड है जो 31 मार्च 21 को एक्सपायर होगा, जो 31 मार्च 21 को आप 10% रिड्यूस करके कर सकते हैं। 18-19 का 31 अगस्त तक नॉर्मल टाइम में भी, बिकॉज एक्सटेंडेड टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो SEIS स्कीम है वो आपकी गवर्न करती है। फ्रेंड्स, एक और चैप्टर 3 की बात करूंगा, एक स्टेटस। सबको एक लगता है कि भाई मुझे VIP क्यों नहीं कहा जाता, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं VVIP या VIP की कैटेगरी में आना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, स्टेटस। आपको एक स्टेटस दिया जाता है यदि आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, $3 मिलियन से ज्यादा यदि आपने पिछले 3 साल और करंट ईयर में एक्सपोर्ट किया है तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, $25 मिलियन से ज्यादा किया है तो 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, $100 मिलियन से ज्यादा किया तो 3 स्टार, $500 मिलियन से ज्यादा किया तो 4 स्टार, $2,000 मिलियन से ज्यादा किया तो 5 स्टार। 5 स्टार इज द लास्ट स्टार। तो यदि आप ये करते हैं तो आपको कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा इन ए डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिस। लाइक आपको कोई बैंक गारंटी कहीं पे चाहिए, इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, कस्टम लॉ के अंदर, तो आपको एग्जम्प्ट देके LUT या जो है आपके बॉन्ड के बेस पे ही, इसी तरीके से कुछ नॉन फिजिकल बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, एज ए ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है। इसी तरह कस्टम के अंदर भी एक स्कीम है AEO, अथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, आजकल काफी पॉपुलर है, जो कस्टम हाउस एजेंट या एक्सपोर्टर इंपोर्टर को मिलता है,
जिसमें डेफरमेंट है, कुछ इस तरह की है कि भाई आपको ग्रीन क्लियरेंस, ग्रीन कार्ड वाला कंसेप्ट है। तो ये फ्रेंड्स ये बेनिफिट की बात हुई। अब मैं चैप्टर 4 हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, जिसमें ये है कि यदि आपका प्रोडक्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है होता है, तो आप उसके इंपोर्ट के लिए कुछ भी मंगवाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल रहता है, कंज्यूमेबल रहता है, तो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। वो स्कीम है ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। और इसी का एक अल्टरनेटिव स्कीम है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, जो कस्टम जो है आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शेप में देता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ड्यूटी एग्जम्पशन, ड्यूटी रिमिशन स्कीम, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। कितनी टाइमलाइन में आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यदि आपने नहीं किया तो आपको एक्सटेंशन 2 बार मिल सकती है 6-6 महीने की। यदि फिर भी नहीं कर पाए तो आपको जितना आपने ड्यूटी किया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। और इसमें कुछ सियोन फिक्स है कि आप कितना मटेरियल मंगवा सकते हैं। यदि आप फिक्स में हैं, नहीं तो आपको सिस्टम के अंदर आके अपना एक अंडरटेकिंग देके कि ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होगा, और इस प्रोडक्ट के लिए तो गवर्नमेंट उसको असेस करेगी और आपसे एक अंडरटेकिंग लेगी कि लाइसेंस शुरू में ही दे देगी, लेकिन एक अंडरटेकिंग दे देगी कि यदि हमारे असेसमेंट में कोई वेरिएंस आया तो जो वेरिएंस है उसके ऊपर आपको ड्यूटी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से ये एग्जम्पशन स्कीम्स हैं। इसकी कुछ पैरामीटर्स भी हैं जो है आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। डीएफए ये है, पहले आप एक्सपोर्ट करके बाद में इंपोर्ट कर सकते हैं। 20% वैल्यू एडिशन कंपलसरी है। ड्यूटी ड्रॉबैक मैं शेयर कर लूंगा, वैसे कस्टम का प्रोविजन है, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नहीं है। एक ऑल इंडस्ट्री रेट होता है, यदि आपने जो है एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं यूज हुआ, या आप किसी कारण से री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी और को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आपने ड्यूटी पे करी थी वो आपको एज इट इज 98%, 2% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रखने के बाद जो है बैलेंस आपको मिल जाएंगी। और यदि जैसे सपोज आपने कुछ उसका यूज किया कर लिया तो उसका कुछ रिडक्शन करने के बाद में जो उसकी वैल्यू निकलने के बाद में उसका रिफंड जो है कुछ परसेंटेज रिड्यूस करके, तब जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मेरे सामने एक केस आया था जिसमें ये इसमें प्रूव करना होता है कि आपको आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट जो आपने इंपोर्ट किया था वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो असेसिंग ऑफिसर होता है, जो कस्टम ऑफिसर होता है, जो ऑथराइज ऑफिसर होता है, वो प्रॉब्लम इसी बात पे करता है कि ये कैसे प्रूव करोगे कि ये सेम प्रोडक्ट था। एक बार हमारे एक क्लाइंट ने जो है इंडिया से बाहर से जो है रॉ शुगर इंपोर्ट करी, और दैट वाज इनटू ह्यूज क्वांटम, और वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जब वो इंपोर्ट हो गई तब इंडिया के अंदर रेट डाउन हो गए, और तो उसने कहा कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं री एक्सपोर्ट कर देता हूँ। उसने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर उसने मटेरियल रख दिया और वहीं से उसने एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। कस्टम ऑफिसर कहने लगा कि नहीं मैं तो नहीं मानता कि भैया आप ये सेम प्रोडक्ट है। हमने प्रूव किया कि भैया ये वहीं से मटेरियल हुआ जिस दिन आपने पास आउट किया, जिस दिन आपने कस्टम क्लियरेंस किया था, ड्यूटी पे करी थी, जिस दिन हमारा बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, हमने डायरेक्टली यहाँ से प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस में लेके गए। उसकी लॉरी रिसीट्स हैं, उसका हमारे पास जो रेंटल रिसीट है वो सारी हैं, वहीं से हम वापस लेके आए हैं और यहीं से क्लियरेंस हो रही है। इसी पोर्ट से हमने इंपोर्ट किया था और इसी पोर्ट से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कहने लगा नहीं उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, हमने कहा नहीं हम नहीं मानते, तो हम अपील में चले गए, तो वी विन द अपील। तो बेसिकली द आइडिया इज लाइक दैट कि it is the procedural things which one has to understand with same product has to be exported। दूसरी चीज ये थी कि कई बार जैसे इंडिया के अंदर एक बार आपको याद होगा फार्मूला 1 रेस शुरू हुई, कार इंपोर्ट होनी थी, बहुत सारी स्पोर्ट्स गाड़ियां इंपोर्ट होनी थी। उन्होंने कहा कि भैया ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दिलवाओ। मैंने कहा भाई ये नेशनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ये आपका कॉमर्शियल वेंचर है। आप पैसा कमाने के लिए ये सारा जो है जो भी खेल हो रहे हैं, ये कोई कॉमनवेल्थ गेम नहीं है या ये कोई एशिया गेम्स नहीं है, ये आपके कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम फिर भी आप कहते हो कि अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर देते हैं। तो हमने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। हमने कहा कि भाई आप पे करो ड्यूटी, और जब ये आपकी जो कार वापस जाएगी आपको जो है जितना भी आपको जो है अंडर दिस स्कीम ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक आपका कुछ कट होके आपको वापस मिल जाएगा। फिर इस स्कीम के द्वारा जो है जितनी भी कार इंपोर्ट हुई थी स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स कार, वो उसी तरीके से वापस हुई। तो एक ऑल इंडस्ट्री रेट होता है जिसमें परसेंटेज ऑलरेडी फिक्स है बाय वे ऑफ द डीमिंग फिक्शंस।
तो इस तरीके से हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक का सिस्टम होता है। यदि ड्रॉबैक की वैल्यू 50 रुपए से कम मिलती है तो उसको नलीफाई कर दिया जाता है, नहीं दिया जाता। एक और स्कीम है इंपोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स। इसमें आपको यदि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस मशीन के यूसेज के द्वारा, तो आपको जितनी आप ड्यूटी सेव कर रहे हैं उसका 6 टाइम इन 6 ईयर्स एक्सपोर्ट करना होता है। और उसका क्राइटेरिया यह है कि जो यदि आप एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हैं तो पिछले 3 साल का जो एवरेज है वो एक्सपोर्ट को भी आपको ऑब्लिगेशन के अंदर लेना पड़ेगा, वो आपकी एवरेज को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद एडिशनल जो स्पेसिफिक आप जो बेनिफिट ले रहे हैं उसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपकी ऑब्लिगेशन की कंडीशंस हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव आइटम्स हैं जिनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने की बात है। एक और स्कीम मैं आपको ले लेता हूँ, फिर एक थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। एक ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो है एक ट्रांसपोर्ट और मार्केट असिस्टेंस एक बेनिफिट है। जो कुछ जो चैप्टर 1 से 24 के अंदर जो आइटम्स फॉल करती हैं, बारिंग कुछ आइटम्स जो मैंने आपको दर्शाई हैं, इन आइटम्स को छोड़ के, तो इसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट कुछ आपको ट्रांसपोर्ट या जो हमारी मार्केट असिस्टेंस देने के नाम पे कुछ बेनिफिट देती है। वो बेनिफिट डिपेंड करता है कि आप 20 फीटर कंटेनर यूज कर रहे हैं, रेफर कंटेनर है, नॉन रेफर कंटेनर है, बाई एयर है, तो उससे और कौन सी कंट्री को कौन से रीजन को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बेस पे। लेकिन ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है आपके अकाउंट में। आप डीजीएफटी को अप्लाई करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। इस तरीके से ये सारा प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। कुछ परमिसिबल कंट्रीज हैं, ये सभी कंट्री में नहीं है, और कुछ इसमें कैटेगरी है जो इनएलिजिबल हैं। क्योंकि ज्यादा ना बताते हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा ना करते हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रोसीजरल चीजें हैं। जैसे हर केस में, मैक्सिमम केसेस में आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी तो एडवाइजरी की है ही है, लेकिन हर केस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। जैसे वो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड विद। ये सारे हमारे कुछ और भी प्रोफेशनल जो प्रमोशनल स्कीम्स हैं जो ज्यादा ना डिस्कस करते हुए, कुछ जैसे कुछ प्रोविजंस हमारे कस्टम लॉ के भी अंदर भी आते हैं। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, होल प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच इज एनहांसिंग योर जो कैपेसिटी है मोर देन 25%, तो आप अंडर द कंसेशनल स्कीम्स अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री 98 के अंदर, चैप्टर 98 के अंदर जो है आप कंसेशनल रेट पे इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के बिना भी। तो ये सारी स्कीम्स मैंने आपको डिस्कस करी। इन स्कीम्स के द्वारा जो है मैं अपने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला जो मैटर है ये यहीं पे क्लोज करूंगा। उसके बाद में एफसीआरए पे चलूंगा। मेरे ख्याल में जो यदि किसी के कोई क्वेश्चन जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाले हों उसको हम पहले ले लेंगे, एफसीआरए को फिर बाद में शुरू करते हैं। राजेश भाई, हमारे कुछ साथी लोगों के यदि कोई क्वेश्चन हो तो यदि क्यूए खोलो, उसमें आ रहे हैं शुभ साहब। अच्छा, वो आ रहे हैं, क्यू है ना, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ जी, क्या मैं पढ़ दूं? हाँ आप पढ़ लो तो ठीक है, नहीं तो मैं अर्चना भटिया क्वेश्चन है, इफ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन वांट्स टू सेंड डोनेशन टू अ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंडिया, इज अ ट्रस्ट रिक्वायर्ड? एफसीआरए क्या सर? हम एफसीआरए का बाद में लेते हैं, एफसीआरए तो अभी मैं पढ़ाऊंगा। सर विशाल चौधरी सर का है, चुक सर, कैन एन एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट इंपोर्ट मटेरियल्स लाइक yarn to be processed by intermediary mill by weaving to fabric and exported as ready-made garments by the importing exporter? या विशाल जी को मैं बताऊंगा, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है गारमेंट, इसके लिए आप कोई भी इनपुट जैसे यार्न है, जो भी प्रोसेस आइदर डायरेक्टली बाय यू और योर सब कॉन्ट्रैक्टर, जैसे होता है ना कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन आपका एक सब मैन्युफैक्चरर भी है, यदि उसके लिए भी आप कुछ मंगवाना चाहते हैं तो अंडर दी फ्री कैटेगरी, अंडर दी जो मैंने स्कीम बताई है एडवांस ऑथराइजेशन, उसके अंदर आप इंपोर्ट करवा सकते हैं आइदर बाय योरसेल्फ एज ए मैन्युफैक्चरर और बाय सम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आल्सो। वो जो है वो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं अंडर द स्कीम कॉल्ड एडवांस ऑथराइजेशन, चैप्टर 4 ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी।
ठीक है लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए। Any other question? सर उनकी क्वेरी है बट नो SION इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर जान। नो इशू, नो इशू। SIO इन नॉन प्रिस्क्राइब्ड मींस आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। देयर इज ए डिक्लेरेशन फॉर्म, देयर इज ए सेल्फ डिक्लेरेशन कि जो प्रोडक्ट है वो आप यूज कर रहे हैं, उसका फिर एक नॉर्म्स कमेटी है। नॉर्म्स कमेटी उसको एनालाइज करती है विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ द टेक्निकल मिनिस्ट्री। वहां पे एक टेक्निकल ऑफिसर है कि आपने जो क्वांटिफाई दिया है उसका पूरा आपका ड्राइंग आपसे मांगेगा, जस्टिफिकेशन मांगेगा। यदि वो कहता है कि नहीं आपने एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर दिया और आपने कहीं लोकल कंज्यूम कर लिया, तो उतना जो वेरिएंस है, जितना वो कहेगा कि आपने एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर लिया, तो फिर उतने एक्सेस के ऊपर आपको ड्यूटी और इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो वो टेक्निकल अप्राइजर के रिपोर्ट के ऊपर हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा सर, फिर एक क्वेश्चन है सुनील जैन सर का, परचेज फ्रॉम इटली एंड डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू चाइना, कैन यू डू सच ट्रांजैक्शन? तो इंडिया से रूट ही नहीं हो रही मेरे हिसाब से, तो ठीक है। या इसमें क्या है, ये एक मर्चेंट एक्सपोर्ट, इसको हम कहते हैं मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री विदाउट टचिंग द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। दैट्स करेक्ट It सर। is not coming to the custom frontier of India. It's a trade between one country to the other country. फेमा के अंदर, जैसे मैं फेमा में जाऊंगा, फेमा के अंदर एक इसका स्पेसिफिक रेगुलेशन है, स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि आपको दोनों ट्रांजैक्शन को स्क्वायर अप करना है विद इन ए पार्टिकुलर टाइमलाइन। विद इन 9 मंथ आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन जो है, तो आपका जो अथोराइज डीलर है, जो आपका बैंकर है, जब वो पैसा भेजेगा इंपोर्ट करने के लिए, और जो जहां से आपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसको, तो आपकी ट्रांजैक्शन की एक स्पेसिफिक जो है प्रोविजन है कि भाई इसका फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। आपको कुछ पैरामीटर्स को जो है अंडरस्टैंड करके, दो इट इज नॉन जीएसटीएबल आइटम, कोई इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और एक कंट्री से इंपोर्ट करके आप दूसरी कंट्री को भेज सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो उसका फेमा के प्रोविजन है कि आपकी स्क्वायरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो मीट आउट करनी पड़ेगी, और उसके अंदर वैल्यू एडिशन भी है कि कितना परचेज और एक्सपोर्ट के अंदर, परचेज और सेल के बीच का जो गैप है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट सर FCRA शुरू करो सर। है FCRA, that's it. FCRA क्या है? FCRA is a foreign contribution. This is not a transaction which is related with any trade. Basically, it is a contribution by anyone whosoever is not an Indian, any person who is not in India. इसका जो है ओरिजिनल लॉ था 1976 का, और इसको 2010 के अंदर रिपील करके नया लॉ लेके आ गए। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, पुराने वाले को रेगुलेट, पुराने वाले को जो है कंसोलिडेट करके जो नई चीजें हुई हैं वो जो है वो उसको डेवलप करना। दिस हैज बीन इनेक्टेड टू कंसोलिडेट द लॉ टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉर एनी एक्टिविटीज डिट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। होता क्या था, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी थी जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करती थी। बहुत सारे, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले बहुत सारे रोज ही पेपर में आता था कि फलाने एनजीओ के ऊपर जो है कोई सर्च हुई, कोई क्या हुआ, कोई ईडी या कोई सीबीआई। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो इंडिया की ग्रोथ को जो है रिस्ट्रिक्ट करती थी। जैसे कोई ऐसा बंदा खड़ा हो गया कि भाई जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट कहने लगा अपने आप को, लेकिन वो क्या करता था, बाहर से पैसा आता था, उसको यहाँ पे डिस्टर्बिंग कि यहाँ पे ज्यादा जो है अपना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, कोई ना कोई ऐसा फार्मूला लेके कि भाई इट इज अगेंस्ट दी पॉलिसी, इट इज अगेंस्ट दी नेशनल इंटरेस्ट, इट इज अगेंस्ट दी कि आप कोई फॉरेस्ट काट रहे हैं या कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम को, तो उस तरह के मैटर को क्रिएट कर देते हैं और वो नेशनल इंटरेस्ट का बहाना लेके जो है उसके ऊपर काम करते थे। उन सब चीजों को रोकने के लिए जो है आपने ये काम किया। ये इसके अंदर एक एक्ट है और एक रूल्स है जो अंडरस्टैंड करने के लिए। और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? इसकी एप्लीकेबिलिटी है
whole of India and citizen of India outside India. Citizen of India, those who are outside India, it applies to them also. And associate branches or subsidiaries outside India of companies or bodies. जो इंडियन सिटीजन बाहर भी है उसको भी ये अप्लाई करता है. नॉर्मली क्या होता है कि जो होल ऑफ इंडिया जो है तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसको ध्यान से समझने की बात है. तो इसमें जो है बेसिकली होता क्या है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पैसा बाहर से विदाउट एनी कंसिडरेशन, जैसे हम डोनेशन की बात करते हैं, डोनेशन में क्या होता है जो भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो कंसिडरेशन हो. आज मेरे पास एक एनजीओ है, मैंने एक किसी तरीके से एक एनजीओ डेवलप करी और मेरे पास मुझे कोई फॉरेन करेंसी का पैसा चाहिए बाहर से, तो मेरे पास मैं उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूँ. वो मुझे बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग विच इज गोइंग टू द पब्लिक इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड दे आर हैप्पी. जैसे आपने फोर्ट्स के जो है बहुत सारे एनजीओ देखे होंगे. अभी हमारे कुछ बड़े बड़े जो यूएस के अंदर बहुत बहुत एनजीओ का काम होता है या यूके के अंदर जो है वो सारे क्या है, तो वो सब एनजीओ जो है, लेकिन प्रोविजन किसको है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कॉरेस्पोंडेंट, जज, लेजिस्लेचर, इन सब को जो है जो भी जिस तरह की भी प्रोविजन है इनको दे आर नॉट अलाउड टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. कैन फॉरेन कंट्रीब्यूशन बी रिसीव्ड इन इंडियन रूपी? यस. Any donation, delivery or the transfer received from a foreign source, where if the money is been ultimately subsequent to that is coming from the foreign source. जैसे बहुत सारी जो एनजीओ हैं वो एकदम पैसा एक उनका एस्क्रो अकाउंट में इंडिया में ले आते हैं और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ उनका अपना सेटअप होता है जिसके द्वारा वो देते हैं. वो सब भी इंडियन रूपी में भी अलाउ है, बट दैट इज ए foreign contribution. That is not an Indian contribution. That is not a donation in Indian rupee. Even the amount is being received in the Indian rupee. Will interest or any income earned? यदि foreign contribution से यदि कोई income भी earn हो रही है वो that will also part of becoming the part of the foreign contribution. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं. ये basically objective क्या है, ये जो है कि हमारे जितने भी इस तरह के contribution है which is neither फॉलिंग अंडर द ट्रेड. एक तो होता है कि करंट ट्रांजैक्शन और एक होता है करंट ट्रांजैक्शन और एक है कैपिटल ट्रांजैक्शन. ये ना करंट ट्रांजैक्शन है, ना ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ना कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. तो ये ट्रांजैक्शन वो है जो विदाउट कंसिडरेशन है. इनको सुपरवाइज करने के लिए, इनको अथराइजेशन करने के लिए जो ट्रस्ट को है वो पहले रजिस्टर करना होता है. रजिस्टर होने की कंडीशंस हैं कि आपने पिछले 3 साल के अंदर एग्जिस्टेंस या जो है आपको प्रायर अप्रूवल. 2 तरह के मैटर्स होते हैं. एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, वो किसी से भी पैसा ले सकता है. दूसरा होता है कि प्रायर अप्रूवल, आपका जो डोनर है और डोनी है दोनों का पहले से आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आप क्लेम करते हैं कि मुझे इतना पैसा इस सोर्स से आ रहा है, तो आप उस केस में वहां तक पहुंचते हैं. तो इस तरीके से हमारा ये सारा जो है एप्लीकेबिलिटी होती है. और ये इंडिविजुअल एचयूएफ एंड एसोसिएशन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कुछ डेफिनेशंस हैं जो अंडरस्टैंड होने की जरूरत है. कंट्रीब्यूशन, कंपनी, सोर्स, ये सारी चीजें हैं. डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर मेड बाय ए फॉरेन सोर्स, वेदर इट इज इन द कन्वर्टेबल करेंसी, पैसा या कोई आर्टिकल, वो दोनों चीजें जो है, एनी आर्टिकल, एनी करेंसी, वेदर इंडियन और फॉरेन, एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग फॉरेन सिक्योरिटी. तो ये सारी चीजें जो है उसमें आती हैं, कंट्रीब्यूशन में आती हैं. और कंट्रीब्यूशन कौन कर सकता है? फॉरेन कंपनी भी दे सकती है, ओवरसीज एंटिटी भी दे सकती है. फॉरेन सोर्स क्या हो सकता है? फॉरेन कंपनी, सिटीजन ऑफ ए फॉरेन कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री, गवर्नमेंट भी पैसा दे सकती है. एनी इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, एनी ट्रेड यूनियन इन एनी फॉरेन कंट्री, फॉरेन ट्रस्ट और द फॉरेन फाउंडेशन, सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया. लेकिन उसकी जो है कुछ लिमिट्स भी कुछ केसेस में दी गई हैं. ये सारी जो है स्कोप ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये अभी थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी मालूम है अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन इन सब चीजों के ऊपर है. इट इज नॉट इजी. जो अर्लियर इट यूज्ड टू बी, फॉर द लास्ट 5, 7, 6 years so many restrictions.
has been imposed in this 2010 law. So many restriction has been brought in, जिसकी वजह से ये जो है 2010 का जो है ये सारी ट्रांजैक्शन जो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है वो इनको एक्सक्लूड करता है। लेकिन कई बार ये प्रोविजन होता है कि यदि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी कंपनी में ले आते हैं तो वो ट्रांजैक्शन क्या है। तो कई अलग अलग ओपिनियन भी कई सब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वो अलग अलग जो ओपिनियन है उसके अंदर गवर्नमेंट के व्यूज भी उन्होंने अब क्लैरिफिकेशन आनी शुरू हो गई, FAQ आने शुरू हो गए। पहले क्या होता था कि जो जैसे हमारे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि भाई हम अपनी कंपनी के अंदर हम कैपिटल एनहांस भी नहीं कर सकते कि कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि फॉरेन एंटिटी है, सब्सिडी कंपनी है और हमारे पास रिवेन्यू के जो है और जो है जो भी उसने मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाना चाहता था वो इन ए ट्रेड यूनिट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज ए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा भैया यू कैन नॉट मेक इट, बट लेकिन उसने फिर एक जो है कहीं और जो हम सो कॉल्ड मल्टीनेशनल फर्म कहते हैं वहां से मुझे एक ओपिनियन लेके दिया कि हंसराज जी एक ये ओपिनियन लिया है, थोड़ा सा मुझे जो है आपकी गाइडेंस चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये ओपिनियन आपका जो है मैं तो इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ और इसका ग्राउंड मैं ये दे रहा हूँ। तो फॉर्चुनेटली जो है ही एग्रीड ऑन माय वर्जन एंड ही डिसरिस्पेक्टेड दैट काइंड ऑफ जो है जो ओपिनियन था। लेकिन अल्टीमेटली अभी वो प्रोविजंस जो है FAQ के द्वारा क्लैरिफाई भी हो गए कि आप उस तरह के कंट्रीब्यूशन को नहीं ला सकते अंडर द ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स पर्पज। तो कुछ FAQ ऑलरेडी गवर्नमेंट के साइट के ऊपर भी हैं और लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आप सबको बार्ड जो है डी बार्ड फ्रॉम द फॉरेन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन जैसे मैंने बताया, कॉरेस्पोंडेंट, जज है, लेजिस्लेचर है, पंचायत है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल नेचर है, एसोसिएशन और कंपनी एंगेज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑडियो एंड विजुअल न्यूज हैं। तो जो इस तरह के जो यूसेज के लिए FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले आते थे। तो जो पर्सन और बार्डन्स जैसे कैन रिसीव फॉलोइंग एज रेफर्ड इन salaries or wages received from a foreign source, receipt towards the business transaction with foreign entities, gift from the relatives, stipend and scholarship, remittance under the normal course under the FEMA. They are not being allowed. That is covered under the FEMA only. Can an organization of a political nature? No, it cannot be received. Declaration. इसमें एक declaration of an organization to be a political nature. तो कई there are so many things which one has to understand with. लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आप सबसे मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत ही जो है स्मॉल मतलब जो छोटा सा लॉ है और प्रोसीजर सब ऑनलाइन है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी ऑफलाइन कि आपको जो है वहां जाना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर इसके अंदर, लेकिन अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन सिटिंग एट योर ऑफिस और एट योर प्लेस you can apply and you can and it is easy to get it now provided verification or the all formalities are been completed with. तो बोर्ड पे कौन हो सकता है, फॉरेनर बोर्ड पे हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन कौन से फॉर्म यूज करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए FC3 यूज करना पड़ेगा, उसकी 5,000 रुपये फीस है। यदि प्रायर अप्रूवल लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपये फीस है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के द्वारा प्रोसेसिंग का इन्होंने टाइमलाइन दिया है 90 डेज। 90 डेज के अंदर यदि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, यदि रिजेक्शन आ गया तो रिजेक्शन, यदि आपने जो है जो री एप्लीकेशन करने का जो है 6 महीने के बाद ही आप री एप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे पहले आपको और जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स और 3 इयर्स के जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं फॉर द लास्ट 3 इयर्स वो आपको फाइल करने पड़ते हैं। प्रायर अप्रूवल के लिए, प्रायर परमिशन के लिए आपका ट्रस्ट सोसाइटी या कंपनी जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द डोनर, जो डोनर है, क्योंकि ये वो कंडीशंस हैं जो आप रजिस्ट्रेशन में नहीं कंप्लीट करते तो आपको पहले अप्रूवल, जैसे सपोज मेरे पास कोई NGO है
जो मैंने पिछले साल क्रिएट करी और उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं उसके लिए पहले से ही अप्रूवल की मुझे 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ डॉलर जो है इस पार्टी से, पार्टी हैज टू बी आइडेंटिफाइड, द कमिटमेंट लेटर हैज टू बी देयर, और उसकी जो है क्रेडेंशियल्स, उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी चाहिए होंगे, और मेरे भी अपने जो है जो भी रिपोर्ट जितना मैं काम कर चुका हूँ वो भी चाहिए होगी। कॉपी ऑफ द रीजनेबल प्रोजेक्ट फॉर विच द, और अपने प्रोजेक्ट की डिटेल भी चाहिए होंगी। तो ये सारी चीजें FC4 के अंदर आपको अप्लाई करना है अंडर द इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली एज पर द सेक्शन 11 ऑफ द FCRA। प्रायर अप्रूवल के लिए 1,000 रुपये फीस है, वहां मैंने 5,000 रुपये बताई और 3,000 रुपये बताई थी कुछ आपको जो है। तो टाइमलाइन क्या है, 90 डेज भी है इसमें, और नो डीम्ड अप्रूवल नहीं है इसके अंदर। उसमें डीम्ड अप्रूवल है यदि आपकी 90 डेज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है या टाइम पीरियड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो डीम माना जाता है। यहाँ पे आपके पास जब तक अप्रूवल नहीं आ जाए तब तक वो एक्शन नहीं ले सकते, आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरीके से सबमिशन क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपका जो है फॉरेन गिफ्ट की भी बात करते हैं। फॉरेन गिफ्ट जो है वो भी फ्रॉम द रिलेटिव्स आर एग्जेम्प्टेड स्टिल टू बी रिपोर्टेड, तब भी आपको रिपोर्ट करना है यदि 1 लाख से ऊपर है। बैंक अकाउंट, इसका डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, इट इज नॉट द नॉर्मल बैंक अकाउंट। उस बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको उसमें देनी पड़ती हैं। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। डिस्प्ले ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ द रिसीट एक्सीड्स 1 करोड़ रुपी, और जो इसकी रिन्यूअल एवरी 5 ईयर्स आपको रिन्यूअल करवानी पड़ती है, और जब रिन्यू आपका जो एक्सपायरी पीरियड है उसके 6 महीने पहले जो है आपको उसको जो है सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट हैज ए पावर टू सस्पेंड इट गिविंग द वैलिड रीजन। आपको अपॉर्चुनिटी देने के बाद में उसको सस्पेंड किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है या आपको सो कॉज दिया जा सकता है। कैंसिलेशन के रीजंस हैं वायलेशन ऑफ द एक्ट और द रूल्स, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, एक्टिंग अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, वायलेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, नो रीजनेबल एक्टिविटी फॉर द 2 ईयर्स। आपने 2 साल में कोई एक्टिविटी नहीं करी तो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड टू द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन विद प्रायर अप्रूवल्स। तो इस तरीके से मेथड्स ऑफ द अकाउंटिंग हैज टू बी डन ऑन ए कैश बेसिस रिपोर्ट आपको जो है देनी पड़ेगी। प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन, आपको 6 साल के जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। एक आपको रिटर्न FC6 के अंदर एवरी बिफोर 31 दिसंबर आपको फाइल करनी पड़ेगी, और आपको बैंक अकाउंट जो है वो सर्टिफाइड करके देना पड़ेगा जो है। इस तरीके से हमारा, और 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स को आप चेंज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चेंज करने के लिए, इससे ज्यादा चेंज करने के लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की भी लिमिट्स हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना स्पेंड कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की डेफिनेशंस भी हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए ही आप ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर भी आपको स्पेंडिंग जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, वो एज पर द 11(5) ऑफ द IT एक्ट, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसी में ही आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा हमारा लॉ जो है। असेट्स किसको बोलते हैं, इनकम फ्रॉम दी FC असेट्स इज आल्सो, जैसे फॉरेन करेंसी की जो असेट्स हैं, जो आपने पैसा आया उसको इन्वेस्ट किया, उसकी FD बनाई, वो भी फॉरेन करेंसी की अर्निंग्स मानी जाएंगी। तो ये कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड असेट्स इन केस ऑफ द कैंसिलेशन, यदि कैंसिल कर दिया गया आपका फॉरेन करेंसी FCRA, तो वो सारी गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट डिटरमाइंड मेथड से जो है वो उसको ट्रांसफर कर दी जाएंगी, और उसका डिस्पोजल जो है अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। डिस्पोजल कौन करेगा, वो जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही करेगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, यदि आप किसी प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो आपको जो है कॉन्फिस्केशन का भी है, पनिशमेंट का भी है, इम्प्रिजनमेंट का भी है, 1 ईयर और द फाइन आर बोथ डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम, द बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी पैनल प्रोविजन। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं, कुछ ऐसे हैं नॉन कंपाउंडेबल हैं, जो जिसमें पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, जो इसमें उस तरह के ऑफेंसेस हैं जो इम्प्रिजनमेंट है वो नॉन कंपाउंडेबल हैं। बाकी के जो है इंस्पेक्शन का पूरा अधिकार है
गवर्नमेंट को, और सीजर का भी जो है वो अधिकार है विद द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मिसलेनियस कुछ प्रोविजंस हैं जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड, जैसे रूल्स के अंदर ये दिए गए हैं। जो फॉर्म मैंने आपको टाइम टू टाइम बताए हैं, FC1 है इंटीमेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री बाय वे ऑफ द गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। FC2 है application for seeking prior permission of the central government to accept foreign hospitality। FC3 है जो है foreign application for the registration of the acceptance of the, it is a registration form, it is a permanent, once registered for 5 years, 5 साल बाद रिन्यूअल होगा। FC4 है prior approval, जो जिसका पीरियड या तो नहीं है या फिर जो एलिजिबल नहीं है तो वो प्रायर अप्रूवल में जा सकता है, जो अप्रूवल का जो रूट है। रिन्यूअल के लिए FC5, और जो एनुअल जो हमारा एनुअल अकाउंट जो है वो फाइल करना है FC6 के अंदर। FC7 है इंटीमेशन अबाउट द फॉरेन करेंसी अकाउंट, इंटीमेशन अबाउट द फॉरेन करेंसी सिक्योरिटीज अकाउंट। FC8 इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। FC9 FC10 है application for seeking permission for transfer of foreign contribution to other registered body. There is a power between to transfer to the other registered unregistered person. तो इस तरीके से हमारा FCRA चलता है। FCRA is basically for the promotion of the social cause, for the, but money to be received, it is in the public interest. It is not a gift. It is a donation taken by some charitable institution or the Section 8 companies or some kind of NGO or some society of that nature which carries the activities whichever is defined under the law and the regulation framed thereunder. So friends, these are the provisions under the FCA. This is the overview. I have not gone into the depth because time does not allow it, because we have another section to it is with us is the FEMA also. तो FCRA के अंदर यदि हमारा एक क्वेश्चन जो मैं सर एक क्वेश्चन है, if a non-resident Indian wants to send donation to a religious or charitable trust in India, is the trust required to register under FCRA? Yes. Yes. अर्चना भट्ट जी का ही है। It's a non-resident, though it is an Indian. One donation received in the free convertible currency and received from a person who is a foreign national or the person in foreign, it requires to be registered or prior approval. There are two things. If one falls under the category of the eligible to register, so then he can apply for the registration, which is an open registration. And if it is a specific, you are not registered, so then you have to have obtained the prior approval, and unless until you get the approval, you cannot bring out the money into India. So yes, sir, because prior approval in the designated account has to be opened, the funds have to go there, otherwise you can't receive any money. सर अब एक अजब हुआ है कि FCRA account has only interest income from designated account in FCRA account, whether we have to file online quarterly information about the patient or expense incurred. Yeah, it requires, because any money earned out of that free convertible, that FCRA foreign contribution. Suppose you have brought 1 crore rupee and that has been to the designated account. You earn an interest on it. The interest also becomes part of the foreign contribution because it is being earned out of that contribution itself. And accordingly, all the parameters of filing the yearly return has to be met with. Accordingly, it has to be given informed to the respective in your yearly return. अच्छा सर, CA विशाल चौधरी का क्वेश्चन है, सर प्लीज एक्सप्लेन द प्रेजेंट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मोर देन 1 lakh. Yeah, it is basically, it has been said if the money is received as a gift, there one is the contribution for the specific purpose, one is the gift. The gift, if it is go beyond a limit, so then one has to intimate under FC1. There is a provision. It is a compoundable. It is not an offense which is not compoundable
one can simply go and file the form FC1 with a request for the condonation also for the compounding request. Thank you, sir. Sir, Manish Rastogi का question है, if a non-resident wants to set up a hospital, can he or she send funds, and what is the tax application? Sir, FCRA is Ministry of Home Affairs, so that is the registration required there. Typically, if it is a hospital under the category of a, if it is a category under the charitable system, then only it is a FCRA. Otherwise, it is a normal business transaction. Suppose there is a private limited company or limited company, they want to establish as a hospital here, so then the provision applies of the FDI or the FDI system, foreign direct investment, or the money brought in there as a loan under the commercial borrowing, overseas commercial borrowing. If money comes in that category, so then there is no need for the FCRA. FCRA means for the charitable purpose. So very true. It's a non-commercial transaction. It's a non-commercial transaction, so they have to obtain the approval. Then only they can establish the hospital here, and Yes, all the conditions has to be met with. अच्छा सर, छोटी एक क्वेरी है आपके लिए सर. Forms have been changed in 2019. Now for registration is Form 3 and prior permission is in Form 3 FC3 भी. Yeah. तो थोड़ी चेंज हो गया वो. या चेंज हो गया. एंड सर अजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि क्वार्टरली इंटीमेशन की बात कर रहे हैं, ईयरली रिटर्न का बात नहीं, जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आ रही थी डेजिग्नेटेड अकाउंट से. या तो डेजिग्नेटेड अकाउंट से जो भी इनकम आएगी उसकी इंटीमेशन जो है देनी पड़ेगी आपको. क्वार्टरली रिपोर्टिंग वाला ही ना नहीं रही हो ये कह रहे हैं सर, वो देखना पड़ेगा मुद्दा. हाँ जी. अच्छा, क्वार्टरली सर ये नरेश जी का क्वेश्चन है, बड़ा फेमा का क्वेश्चन है. इनका नहीं है कहना लोन भी टेकन फ्रॉम एनआरई रिलेटिव फ्रेंड्स इन फॉरेन करेंसी. अपेरेंटली नो, इसके अंदर फेमा एज अ इम्प्लीकेशन. या इसके जो प्रोविजंस हैं, जो फॉरेन करेंसी जो है आपके फ्रेंड, जो एक रिलेटिव की डेफिनेशन है, आप रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करते हैं तो उससे लोन लिया जा सकता है. यदि जो सर हाँ सर, बट अभी फेमा कर लो उसके बाद लेंगे ना वाले क्वेश्चन. फेमा करके, हाँ फेमा के बाद ले. ठीक है सर. हाँ, FCRA आई थिंक ओवर. एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद द FCRA? नो क्वेश्चन पेंडिंग. नाउ लेट अस कम टू द फेमा. फेमा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब ये समझिए आप, इट इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, so many things were there which are basically regulations were there, but now it has been eased out since 1999. इसके प्रोविजन इसलिए चेंज आए बिकॉज हम जो है अपने आप को शिफ्ट कर गए फ्री इकोनॉमी की तरफ और फ्री सिस्टम की तरफ. तो अब हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हैंड होल्डिंग है और मैनेजमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का, ना कि किसी को कंट्रोल करना है. पहले ऑब्जेक्टिव होता था कंट्रोल करना, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया है. तो अब हमें बिल्कुल क्लियर टर्म्स में समझना है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर इजी चीजें हैं, लिबरलाइजेशन के बाद जो है इसको बहुत इजी कर दिया गया है. और नई पॉलिसी जब भी जो वर्केबल है वो इसलिए चेंज लाया गया. अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू डू डे टू डे बिजनेस आल्सो. क्योंकि पहले क्या होता था कि हर डे के लिए जो है आपको एक ईयर मार्क्ड पैसा मिलता था. सपोज आप 10 दिन के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं ऑन ए बिजनेस ट्रिप, तो आपको एक लिमिट होती थी कि आप इतना पैसा स्पेंड करेंगे. अब वैसी कोई बता के भी नहीं. तो ये इसलिए ईज कर दिया गया क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं. तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे पहले जो स्ट्रक्चर को, यदि जो कोई नया जो है हमारे कोई प्रोफेशनल ऐसे हैं जो इसमें अपने आप को एक्सपर्टीज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कैसे की जाए. उसकी शुरुआत इस तरीके से करें, पहले बेयर एक्ट उठाएं. फेमा का सिस्टम एक अलग है, जो हम नॉर्मल जो है यदि हम समझते हैं, नॉर्मल चीजों को समझते हैं, तो उसमें और इसमें एक डिफरेंस है. इसमें कुछ सब्सटेंटिव सेक्शंस हैं, कुछ प्रोसीजरल्स हैं. मैक्सिमम सेक्शन जो है वो प्रोसीजरल्स हैं. सब्सटेंसिव सेक्शन जो है वो बहुत कम है. उनको हम
2-3 बार रीड करेंगे तो हमें उसका सब्सटेंस पता लगेगा। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें 2 तरह की ट्रांजैक्शन समझिए। एक ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं, और एक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फ्री, आर मतलब you can carry out any transaction unless until it is been not allowed, it is been prohibited. इसका कंसेप्ट क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर मोस्टली फ्री, मोस्टली it is been allowed unless until there is any provision where it has been disallowed, it is been barred. तो उसको जो बार्ड आइटम है उनको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उतना ही काफी है, बाकी की ट्रांजैक्शन फ्री है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की कंसेप्ट क्या है, आपकी सारी आइटम बार्ड है अनलेस अंटिल द आइटम इज मेड टू बी अलाउड। वहां क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ऑल एवरीथिंग यू कैन कैरी विद एक्सेप्ट जहां पे आपको बार किया गया है, जहां को आपको डिनायल किया गया है, जहां पे आपको कहा गया कि यू कैन नॉट डू इट। और यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ सारी चीजें डिसअलाउ हैं अनलेस अंटिल कि समथिंग इज बीन अलाउड। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है। तो 49 सेक्शंस हैं, out of which 1 to 9 section 1 to 9 are substantive and rest are the procedural and administrative. Section 46 of the FEMA grants power to the central government to make rules to carry out the provision of the FEMA. इसके अंदर रूल्स बनाने की पावर जो है, नॉर्मली जो है ये सारी पावर्स आरबीआई के पास हैं, लेकिन कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास सेक्शन 46 के अंदर अपने पास ले ली गई। क्यों ले ली गई आप भी समझते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी इवॉल्व हो जाए जब सपोज आरबीआई का जो गवर्निंग बोर्ड है या जो गवर्नर है या उसका जो बोर्ड है वो डिसएग्री करता है, यदि वो डिसएग्री करता है तो उसके पास एक पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो ओवर रूल कर सकता है कि कोई ऐसे प्रोविजन लाने की जरूरत पड़ जाए। आपको भी मालूम होगा टाइम एंड अगेन कई बार जो है दोनों एजेंसीज के अंदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द गवर्नर हियर और द गवर्निंग बॉडी हियर somehow somewhere comes on a different view of the opinion, different views comes in, so then these kind of provisions are only being used in an exceptional cases. Section 47 of the FEMA grants power to the RBI to make regulation to implement its provisions and the rules made thereunder. RBI is entrusted with the administration and implementation of the FEMA. RBI is what? RBI is a regulator. Like we talk about SEBI in the case of the this or our institute for the governance of our profession. So RBI is a regulator in this case, whether it is banking operationals, whether it is the foreign currency, foreign exchange, whether it is the non-banking foreign currency companies. Now whether it is the this cooperative banks also brought into this net. All banking of the government, unless until something is been empowered to some commercial bank which is of the public sector, or everything has to be like State Bank has something to be given with under the. Otherwise, all banking transaction has to be gone through. RBI has no public transactions. That is the provision under the substantive provision. क्या है? Section 1 क्या कहता है? Application and commencement. सेक्शन 2 डेफिनेशन है, 3 से 9 तक है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। 10 to 12 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑथराइज्ड पर्सन। 13 से 15 है प्रोविजंस रिलेटिंग कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज। 16 से 38 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एजुकेशन अपील एंड डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट। यू सी लाइक हियर 2 layers. First is the RBI. Any contravention made related to the foreign exchange will come on the way. Authorized dealer is the person with whom you are transacting with, but regulator is the RBI. RBI issues the notice. RBI issues the notice, kindly explain, kindly show cause, yeah, whatsoever. If you do not, because it is not a enforcement agency. So enforcement agency is the ED.
Directorate of Enforcement. Any contravention under this law is being routed through the Enforcement Directorate. और 39 से 49 तक जो है वो miscellaneous provisions हैं. These are the provisions. And master directions. कैसे, how this law works? First, it is the mainframe law, this FEMA. Then it is been regulated through the regulation and the rules made thereunder. Then every time, whenever the notification comes or whenever there is a previous master directions, तो मास्टर डायरेक्शंस जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो आरबीआई टाइम टू टाइम निकालती है. मास्टर डायरेक्शन कंसोलिडेट इंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कंसोलिडेट करती है हर चीज के ऊपर, और इस तरह से डिफरेंट मास्टर डायरेक्शंस को दिया जाता है. मास्टर डायरेक्शंस जो है इस पर्पज के लिए दी जाती है, और मास्टर सर्कुलर्स जो है वो निकाले जाते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग, यदि हमारे सेट ऑफ मास्टर डायरेक्शन मास्टर सर्कुलर्स हैं, वो यदि कोई पुराना नया मास्टर डायरेक्शन आता है तो पुराने को सुपरसीड कर देता है, पुराना विड्रॉ हो जाता है. ये कई बार हम पुराने को पढ़ते रहते हैं कई बार, तो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड वंस न्यू मास्टर डायरेक्शन हैज कम इन, तो दैट मींस ऑटोमेटिकली द ओल्ड वन हैज बीन withdrawn. It is by way of the natural process. Legal validity of the circulars has been tested. It has been upheld by the Supreme Court also. Court upheld the power of the RBI also to issue the circulars because it has been allowed under the law, RBI Act as well as the FEMA. RBI Act is a different act where RBI has the power to definitely जो है under the RBI Act. लेकिन उसके अलावा जो है कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, यहाँ बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो आइडेंटिफाई करनी होती हैं. कुछ ट्रांजैक्शंस आपको परमिसिबल होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन नॉन परमिसिबल होती हैं, कुछ प्रायर अप्रूवल की होती हैं. देयर आर 3 कैटेगरीज. बेसिकली देयर आर समथिंग व्हिच इज विदाउट एनी रेगुलेशंस व्हिच इज बीन अंडर द करंट आइटम्स. Then some are being allowed under the automatic route and some are being allowed with the prior approval, with the approval route. Approval is being given by the RBI only. Authorized person, capital account, current account, export, foreign exchange, ये सारा जो foreign currency का account है, जैसे मैंने आपको बताया, current account transaction means a transaction which alters assets or the liabilities, including capital account की मैं बात करता हूँ. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? जो आपकी असेट्स या लायबिलिटीज की पोजीशन को अल्टर करता है या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को भी इंपैक्ट करता है, वो आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है जो आपको नहीं अलाउड है अनलेस अंटिल इट इज बीन परमिटेड अंडर द लॉ, अंडर द फेमा. जो पर अलाउड है सिर्फ वहीं तक अलाउड है, और कैपिटल करंट अकाउंट में उल्टा है, ये मैक्सिमम अलाउड है अनलेस अंटिल इट इज बीन डिसअलाउड. तो एग्जांपल भी है कुछ जो इन्होंने उसमें दिए हैं, जैसे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है, उन हायर परचेज भी है, या उन्हें कैश भी है. तो ये क्या है? इंपोर्ट ऑफ मशीनरी क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. ये आपको अलाउड है क्योंकि फ्रीली अलाउड है बिकॉज इट इज ए बिजनेस, क्योंकि इट इज नॉट ए कैपिटल ट्रांजैक्शन. यदि आपने कहीं उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज फ्यूचर में करना है तो देन इट इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बिकॉज यू आर क्रिएटिंग ए लायबिलिटी, यू आर क्रिएटिंग ए लायबिलिटी इनटू इट, और ऑब्लिगेशन फ्यूचर में जा रहा है. तो आपको जो भी एफडीआई के नॉर्म्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स हैं, या ओवरसीज जो हमारे जो है डेट्स के रूल्स हैं, ओडीआई, जो हमारा जो आपका जो है एक डेट्स है और एक कैपिटल है, तो आपके वो रूल एप्लीकेबल होते हैं बिकॉज इट इज टेकिंग लाइक ए लोन, इट इज टेकिंग लाइक ए लोन इफ इट इज बीन डेफर्ड पेमेंट. तो वो आपको उस सिस्टम के अलावा उस सिस्टम में अलाउ करने पड़ेंगे. तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड नोटिफिकेशन अंडर द फेमा इन द ऑफिशियल गजट from time to time and consolidation thereof
करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बहुत सारी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बहुत सारे नोटिफिकेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस दिए गए हैं, जो विच आई विल बी शेयरिंग टू ईच वन ऑफ यू थ्रू दिस पीपीटी आल्सो। आई विल शेयर माय पीपीटी विद द ऑर्गेनाइजर्स। तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट की, और इसमें शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल में जो है क्लासेस दिए गए हैं, क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और शेड्यूल 1 के अंदर जो है क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट रेजिडेंट ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो ट्रांजैक्शन उस तरह की है, इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज। तो उस तरह की ट्रांजैक्शन को पहले, क्योंकि ट्रांजैक्शन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स रिपरकशन, every transaction has its impact, whether it is allowed or not allowed, allowed to what extent it is allowed, whether it is on a repatriable basis or non-repatriable cases. So every transaction has to be looked into in the manner it is supposed to be. There are the capital account transaction which are been prohibited with in the business of chit fund, nidhi company, agriculture or plantation activity. No one is allowed, even NRI is not allowed to buy any agriculture land in India. They are not allowed to bring out business of a chit fund. They are not allowed to have any nidhi company here. Real estate business or construction of the farmhouse. Though otherwise it is as a developer they can come in trading of the transferable development rights. They are not allowed. So these are the REITs and REITs जो है, ये सब कुछ रेगुलेशन सेबी के द्वारा जो है दिए गए हैं, जो गवर्न होते हैं वहां से। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि भाई अनलेस अंटिल इट इज अलाउड। सर आप क्वेरीज ले लो सर अब, क्योंकि मुझे लगता है आपकी 327 स्लाइड है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द स्लाइड सर, वी नीड मोर सेशन। वो तो मैं समझ रहा था कि भैया ये कंप्रेहेंसिव सारी चीजें, तीनों सब्जेक्ट आपने मुझे दिए, तो हाँ। लेकिन कुछ चीजें जो है रीपेटेबल, या एक जो सब्जेक्ट है ना, जो नॉर्मली हम बात करते हैं लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, जो स्कीम जो है, जो हम सबको एज एन इंडिविजुअल की भी बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो जो है लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम एक जो है, उसको ले लो सर आप, मतलब 5-7 मिनट लेकर के फिर 4-5 क्वेरी है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्वेरी ले लेना, क्योंकि आपका एक सेशन और रख लेंगे सर। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपके जो है राजेश भाई, आप दोस्तों के साथ हैं, जब मर्जी हमें बुलाओगे। आप इंडिविजुअली भी जो है ना, जैसे फिल्म के ऊपर अलग से भी एक चैप्टर, एक अलग से सेशन। जी, आई प्रपोज वी हैव सेपरेट सेशन फॉर फेमा, और ये सर को एक बार अलग से बुलाओ फेमा के ऊपर। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली फॉर फेमा। तो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम जो है, एक लिमिट है $2,50,000 $US per financial year. Any individual can make any kind of investment या जो transaction related to the investment overseas, तो और यदि एक फैमिली जॉइंट फैमिली है तो 2,50,000 पर पर्सन। ये टाइम एंड अगेन ये जो है इसकी लिमिट चेंज होती रही, तो 2015 से इसकी लिमिट जो है 2,50,000 हो गई है। और यदि सपोज आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो आप $10 लाख जो है वो आप 1 साल के अंदर जो है आप ओवरसीज फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज, जो पर्पज इस स्कीम के अंदर बताए गए हैं, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है कुछ, जैसे आप वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडी या कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं जो इसमें अलाउड हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर भी जो है कुछ चीजें अलाउड हैं। आपने किसी को रिलेटिव्स को कोई गिफ्ट देना है, कोई इस तरह के काम करने हैं, तो आप वो भी किए जा सकते हैं। वो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम अंडर दी FEMA जो है विदाउट एनी जो है रिस्ट्रिक्शन आप कर सकते हैं। इसमें मेनली एक और जो प्रोविजन रहते हैं जिसमें जो भी कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, पेनल्टीज हैं, लेकिन क्योंकि आपने सही बताया कि भाई 327 स्लाइड तो मैंने इसलिए दिखाई कि हमारे दोस्तों को जो है पता चले कि भैया स्लाइड बनानी हमें भी आती है, भले ही हम सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं। लोग जो हैं
सेंट्रल काउंसिल मेंबर को ये समझते हैं कि भाई सेंट्रल काउंसिल मेंबर तो वो लोग बनते हैं जो बिना जो है काम किए हुए और बिना पढ़ाई के बनते हैं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं है। तो 327 का डर तो मुझे इसलिए पैदा करना पड़ा कि राजेश भाई को भी मैं बता दूं, या हमारे मित्र लोगों को भी, जो है धमीजा साहब को भी, कोहली साहब को भी, कटवालिया साहब को भी, भाई हम भी कुछ पढ़ाई करते हैं और तभी इतनी स्लाइड बनी है ये। तो फ्रेंड्स, सर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। इन शब्दों के द्वारा मैं धन्यवाद करूंगा और फिर जो है रियली एप्रिशिएट योर कंपीटेंस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साडे भरा लोग सब जड़ा है। सर जी वेरी अवेयर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ insolvency professional exam clear ਕੀਤਾ ਹੈ और continuously updating your skills and knowledge। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज वर्ड्स, फॉर appreciating and boosting our morale और teaching us। सर क्वेरीज ले रहे थे थोड़ी। हाँ, Can loan be taken from NRI relative friend in foreign currency? Yeah, loan can be taken from the friend, not from the not nahi, from the From a relative, not from the friend, sir। as defined. Yeah, as per the definition। It is not from the friends. Sir, gift of rupees 10 lakhs is to be received from son from foreign country to be spent on payment for another country of education on his son in form FC1 to be filed। Gift of rupees 10 lakhs is to be received from a son from a foreign country। सर एक बेटा ऑस्ट्रेलिया, एक बेटा यूएस है। ऑस्ट्रेलिया वाला बेटे ने फादर को गिफ्ट दे रहा है 10 लाख रुपए की, ताकि वो यूएस वाले बेटे को भेज दे। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करा दो तो हो जाएगी। ये तो अलाउड ट्रांजैक्शन है, हो जाएगी। या अलाउड ट्रांजैक्शन है। 10 लाख का यदि आप गिफ्ट देते हैं तो टू अनदर कंपनी अनदर कंट्री, तो आपको जो FC1 है वो 1 लाख से ऊपर का गिफ्ट है, तो आपको फाइल करना है। ठीक है सर, ये केवल बजाज जी का क्वेश्चन है। फिर इंडियन रेजिडेंट इन इंडिया स्पेंड सम मनी फॉर टिकट्स ऑफ एयर ट्रैवल ऑफ हिज रिलेटिव्स हु आर फॉरेन नेशनल and that person sends the foreign currency that money back to India as per mission, any permission is required? No permission is made. Reimbursement of expenses है। No permission is required. No permission is. It is a personal transaction. सर फिर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उमेश कुमार व्यास सर का। An Indian private company received foreign investment from an overseas corporate in 2014. The company filed the FCGPR after 2 years, but does not have any acknowledgement from the AD. Now the annual returns, what annual returns can be filed and what are the penalty for previous years? Yeah, basically there is a provision कि within a number of days you have to file the FCGPR if it is under the automatic route. Basically there are two parameters. One is the automatic, second is the approval. If it is under the approval route, so then it is not, FCGPR has to be filed only after the money received and the approval received from the RBI. So under the automatic route, you have to file the FCGPR if it is an online system. Not filed if the acknowledgement is not received. So now you can comply with, and you can go to the RBI for the purpose of the compounding. And compounding sheet is available on the site of the RBI, and accordingly you have to pay once the compounding order is being received, you have to discharge your liability of the compounding fee. Calculation sheet is there on the RBI website. ठीक है सर, thank you for the clarification. Sir, a private limited company has 2 shareholders holding capital of 5 lakhs each. In the year 2015, one of the shareholders became a non-resident settled in UK. Now, do we need to file any report under FEMA? Yeah, they have to file the report like now they are no more an Indian. Yes, they sir. have shifted and they have become the NRI, and Yes. accordingly it has to be intimated and the system has to be closed. They don't have any liability to continue with.
Sir, the other question is from Prachi Jain, a foreign citizen holding OCI, but now is again going back to UK. Then will the further investment by that should fall under FI? It's a foreign investment because If he is shifting and the shifting make him to is the status is being changed from the resident to the non-resident, so then he has to follow all the formalities whatsoever is being required for the non-resident. So the other question is, Mr. X, US national, person of Indian origin holding overseas citizen card of India, has invested rupees 5 crores in setting up ginning and oil mill in India. Is this allowed? No, sir. Basically, to understand with We'll have to take more details on the transaction. yeah, most of the items basically you see like there is a automatic route for the FDI, free foreign direct investment money coming to India. In most of the cases it is 100%, and some of the cases it is 74%, 49%, 51%, 24%, or in some of the cases which are of the exceptional nature not allowed. So here it is, all is the product based, and FDI rules will be applicable, and accordingly it is allowed. Sir, But but you you'll also have to look at the nature of the entity which has been formed in it as a private limited company or a public traded company, because this information, you need more information on this. no, it's a, if it is under the corporate structure, then only But it is not clear from this. He's Indian. Mr. X is a local. Either he let Mr. Anil Ji clarify, because this is not full information. yeah. So then other one is from Mr. Keval Bajaj. Is a restriction on export of masks to all or medical mask? It's a surgical mask. It is, but you have to see the definition of the surgical mask. If it is a normal which is being used for the normally it is being if it is a matlab, basically there is a specific whatsoever the specification written in the this prohibition list, they have defined that this is not allowed, this is prohibited. Okay, If it sir. is not falling in that category, so then it is allowed. It is a surgical mask which is not allowed. Fair enough, sir. In case software is downloaded, then no import duty is payable, while if imported on a CD, duty is applicable. Is correct? Yeah, basically you understand with there is a, one is the services, one is the goods. One is the services, one is the goods. If anything is being brought into in India through the suppose courier or through post office or through some methods, they will be charging custom duty. If it is been downloaded at your own place, and if you are a trader, you are a registered person under the GST, so it is a services. So services you have to discharge your liability as a in the GST as a reverse charge mechanism. Sir, both the things will be there. Reverse charge would be there, and also your payment to foreigner will come here. Achha, In sir, that case, Anil Ji has clarified that the investment is in a private limited company in the ginning mill. The investment of rupees 5 crores. So basically that means under automatic rule, you have to do the compliance and investment into a private limited company, in shares of a private limited company. It's a 100% allowed. It's a Yes. 100. Yeah, it is 100% allowed. There is no issue, but only the formality you have to complete. All the compliances have to be made. Compliances has to be made. FCGPR. So that is the end of the question, sir. Thank you very much. Thank you all. Thank you all my friends. Rajesh ji, aa jao aap. Thank you Rajesh bhai, Rajiv ji, thank you sir ji, Kohli साहब धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਦਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਟਪਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। Sir, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ you have taken the entire gamut, globalization, 1991 FCRA, the trade policy in detail, very well explained the challenges for a change for everyone. For the quarter ending March 20, we had a current account surplus
after I think about 17 years or something. Then you also explained the details under the merchandise scheme, the services scheme, EPCG scheme you can use. FCR is the Ministry of Home is more of a regulatory thing because there are lots of people who are using it which are detrimental to the interests of the country. FARA was very, very draconian. The FEMA came is much nice, and every year on 1st of July you have a master circular. It becomes much easier. Then you don't have to refer to the previous circulars earlier. Trade terms is there. So, sir, thank you very much, and we'll have a very detailed session on FEMA from you, sir. चलो ठीक है, thank you Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, each and Thank you, brother. Thank you, Rajesh bhai. Thank you, Ashwini bhai. Thank you, साहब Rinta very bhai. well explained, बहुत अच्छा किया. तुम्हारा धन्यवाद, ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ Thank you very धन्यवाद. much. बहुत in a very lucid manner, you done a complete journey of these provisions and acts. ਹੁਣ 327 ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. राजेश भाई जड़ा है वो कहेगा 300. मैं तो डर गया, मैं तो 327 स्लाइड से सर. 327 स्लाइड कौन पढ़ेगा? सर ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ से 365 नहीं बनाया रोज दी स्लाइड. एक दिन एक स्लाइड. थैंक यू चुप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतने डिटेल्ड एक्सप्लेन करा और मैं अब पीछे देख रहा हूँ. देखो आपने पूरे वर्ल्ड को कांकर कर लिया. पहले आपकी स्लाइड चल रही थी, इसीलिए कहा कि आपने पीछे देखो पूरे वर्ल्ड को आपको कैप्चर करा. आपका 5 स्टार 2000 रोल्स रॉयल्स की बात कर रहे थे. रोल्स रॉयल्स आपकी है. आप 5 स्टार देखो. आपने पीछे मैं आपका देख रहा हूँ, पीछे आपने पूरा वर्ल्ड दिखा दिया कि आपने पूरा वर्ल्ड कांकर करा हुआ है. मैंने इसीलिए कैप्चर किया ना. जी दुनिया मुट्ठी में रोज रॉयस एयरक्राफ्ट फिर गया सारे. रोज रॉयस बड़ी छोटी चीज है चुक साहब के लिए. राजीव जी आपने मेरे मुंह की बात खींच ली. मैं वही आ रहा था. मैंने तो बात शुरुआत इनके लिए करी. देखो अभी मैं भी वही कह रहा था कि अभी तक जो था ना पीछे वर्ल्ड नहीं दिखाया जा रहा था. अब इन्होंने पूरा पीछे अपने वर्ल्ड दिखा दिया कि मैंने वर्ल्ड कांकर करा हुआ है. सिर्फ इंडिया तक नहीं हूँ मैंने पीछे नहीं, मैंने आपको फ्रंट पे लाके दिया कि भैया पूरा दुनिया मुट्ठी में कर लो. इंडिया की इतनी बड़ी जो है ताकत. इंडिया इज सच ए मतलब कंट्री. वी कैन होल ऑफ द वर्ल्ड वी कैन कॉन्कर. तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडिया. एग्रीड चुप साहब, बिल्कुल मानता हूँ. ऐसा आप हमारे नेता हैं, ठीक है. आप आगे बढ़ते चलिए, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं. नहीं, साथ होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए ना. हमें पीछे वाले लोग पसंद नहीं है, हमें साथ वाले लोग पसंद है. देखो मतलब इट्स वेरी आई थैंक यू फॉर योर वंडरफुल डेलिब्रेशन. आपने इतना वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करा. मतलब एज ए टीचर जो है ना, बच्चों को समझाया जाता है, आपने पूरी सारी चीजें समझा दी. और इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ये अनटच फील्ड है हमारी तरफ से. वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन दिस. यू हैव टेकन द लीड. तो मतलब एनीबॉडी, मतलब मैं आई नो यू. आपको किसी भी प्रोफेशनल को अगर हेल्प की जरूरत है, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम आउट. सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल. और राजेश जी एक और फेमा पे कर रहे हैं. इट विल बी अगेन वेरी गुड हमारे लिए. इट विल बी अ वेरी गुड बिग अपॉर्चुनिटी टू हियर यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राजेश जी. थैंक यू सुनील जी. थैंक यू राजीव जी.